So good morning everyone. ठीक है. So in continuation of our toppers talk. So last time भी हमारे साथ अद्वैत सिंह ही थे. This time Ayan Jain. ठीक है. AIR 16 we have with us. So let's है ना have a round of applause for his success. And please be seated. आप लोग बैठ जाइए. Let me just give you a brief introduction about है ना Mr. Ayan. So IIT Delhi graduate, electrical engineering, and it was his third attempt है ना this year जो result आया. So आप लोगों के doubts होंगे last में we'll take up, and उससे पहले may I please request Bhavani sir to present him his books है ना. Okay. So without wasting any time, I just want to tell you कि we are having this toppers talk and हमारे पास अलग अलग क्या कह सकते हैं toppers आते हैं. What I want you to pick is कुछ broad threads होते हैं preparation के, ठीक है. And if you pick them तो आपके लिए चीज़ें हो जाती हैं आसान, ठीक है. तो सबके experiences थोड़े बहुत minor level पे differ करते हैं, but again वो broad threads या broad ideas या themes जो हैं, ठीक है, वो अगर आप पिक करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए फॉर यू ऑल, ठीक है. सो मिस्टर अयान. Hello everyone. So really good to be here. So I'm Ayan. I got rank 16 this year. This was my third attempt. So to give a rough idea about my journey, around 2017 I graduated. I went to IIT Delhi, did my graduation in electrical engineering. In my first year of college I decided to give civil services. And I started my prep around mid-2019. So I was about to enter third year at that time. I took a coaching. I used to stay in Delhi at that time. Gave my first attempt in 2021, where I was not able to clear prelims. In my second attempt, I got rank 87. I joined IPS, where I'm currently serving. And in my third attempt, I got rank 16. So I'll begin by talking about the exam, some basics about the exam. Then we can discuss each stage individually. And then whatever doubts you have, even if there are broad areas you want me to cover or which I may have missed out on. So a few things about the exam. I think you all would be knowing there are 3 stages: prelims, mains, interview. Prelims is qualifying but extremely important. Nowadays, many qualified candidates are not able to clear prelims. In prelims also, GS and CSAT both have become very, very difficult. And mains and interview are of course what decide your rank and consequently your future. So let's begin with prelims. So I think all of you are comfortable in both Hindi and English. So GS prelims की बात करें तो earlier it used to be that बस 3 महीने पढ़ लिया exam clear हो जाता था. Now it is not the case. Especially last year जो pattern आया है, it has become extremely difficult, extremely risk prone, and luck का role भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. Very honestly putting it that way. तो very first thing is that prelims के लिए भी बहुत और पढ़ाई करनी पड़ती है. अब कैसे पढ़ाई करनी है वो भी उस पर आते हैं. बट फर्स्टली सीसैट को भी मत इग्नोर कीजिएगा. इवन माई फ्रेंड्स, माई जूनियर्स विथ मैथ्स ऑप्शनल फ्रॉम IIT Delhi, दे वर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, सम ऑफ देम. सो अगेन सीसैट पे भी आएंगे अब. सो लेट्स बिगिन विथ हाउ टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स. पहली चीज़ होती है स्टैटिक. सारे टॉपिक्स बेसिक्स आपको करने होते हैं. अगेन बुक लिस्ट सेम रहती है तो आई विल नॉट बी रिपीटिंग, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. बट कैसे पढ़ना है इस पे आते हैं. सो बेसिक्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही बता देता हूँ. पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री. दीज आर एरियाज वेर यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन. नाउ बुक लिस्ट अगेन लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह ये आपको पता ही है. कैसे पढ़ना है दैट इज इंपॉर्टेंट. नंबर 1 थिंग इज यू शुड सी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से रेगुलरली देखना है, वो भी बैकवर्ड्स. मतलब सबसे पहले 23 का पेपर देखना, फिर 22 का, फिर 21, ताकि ये आइडिया लगे कि आज के टाइम पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अकॉर्डिंगली यू हैव टू अलाइन योर प्रेप, क्योंकि पूछ कुछ रहे हैं, आप कुछ और पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सपीरियंस. ऑल्सो बिकॉज टाइम आपका इशू आएगा. इवन इफ यू आर स्टार्टिंग प्रेप राइट नाउ, यू माइट थिंक दैट अभी बहुत टाइम है, बट एज यू एंटर प्रेप यू विल रियलाइज दैट टाइम इज लिमिटेड. बहुत कुछ पढ़ना है एंड बहुत फिर टाइम कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं. दिस इज समथिंग एवरी वन फेसेज. इवन इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई वंस अगेन फेस दैट एक्सपीरियंस. जो 6th अटेम्प्ट में होते हैं उनको भी होता ही है. So very first thing is gain clarity on what is being asked in the exam. This means multiple things. Number 1, which topic, which subject is being asked more. जैसा मैंने बोला, polity, economy,
मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस टेक, सो नेचुरली इन पे ज़्यादा फोकस करना है. सेकेंडली, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. सो अगेन फैक्चुअल आते हैं प्रीलिम्स में, नॉट टू मच एनालिसिस ओरिएंटेड, बट वो फैक्ट्स भी किस डिग्री तक आ रहे हैं, किस एक्सटेंट तक आ रहे हैं, दिस इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उससे क्या होगा कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप बेसिक बुक पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन देख रहे हो, यू विल हैव दैट क्लैरिटी कि इसमें क्या रेलेवेंट है, क्या आपको पढ़ना है. अकॉर्डिंगली आपका टाइम भी बचेगा. एंड द फैक्ट इज सबकी मेमोरी भी लिमिटेड होती है, सब कुछ नहीं याद किया जा सकता है. तो हैविंग दिस वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज रेलेवेंट टू यू, व्हाट विल हेल्प यू इन द एग्जाम, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. एंड चाहे आप किसी भी स्टेज में हो अभी अपनी जर्नी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कभी भी देख सकते हैं. नाउ बेसिक बुक्स आपने एक बार पढ़ ली, ये याद रखिएगा आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है. नॉट इमीजिएटली बट बिफोर योर एग्जाम्स यू शुड हैव रेड एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट बेसिक बुक्स एटलीस्ट 3 or 4 टाइम्स. स्टैटिक का सबसे बड़ा इशू क्या होता है, रिविजन बहुत बोरिंग होता है. एंड इतनी बड़ी बुक्स हैं लक्ष्मीकांत 700-800 पेजेस की, तो मन नहीं करता है पढ़ने का. बट उसके बिना फिर वो क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट हो जाता है. इफ़ आई टेल यू माई एक्सपीरियंस ऑफ माई फर्स्ट प्रीलिम्स, सबसे बड़ी गलती ये थी दैट स्टैटिक को अंडर एस्टिमेट किया. ऐसा लगा कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है तो क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली आई मिस द कट ऑफ बाय 4 or 5 मार्क्स. एंड 2 या 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए थे. तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने यही अप्रोच लगाई कि बेसिक्स गलत नहीं करने हैं, स्पेशली पॉलिटी एंड इकोनॉमी. अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दीज 2 सब्जेक्ट्स बिकॉज सो फार इनसे थोड़े प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आए हैं. अगेन आई एम्फेसाइज ऑन सो फार बिकॉज कोई भरोसा नहीं नेक्स्ट ईयर क्या ट्रेंड आ जाए. तो कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, बस प्रायोरिटाइजेशन टाइम कंस्ट्रेंट में तो करना ही है. सो अगेन बेसिक बुक्स 3-4 बार कर ली, फिर देन यू कैन गो फॉर मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस. अगेन मॉक टेस्ट पे भी इन डिटेल आऊँगा. अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट, PYQs, क्विजेस वगैरह, उससे पूरा आपको भी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड आर यू. बिकॉज ये चीज़ मुझे मेरे सीनियर्स भी बोलते थे, स्टैटिक इज़ द की. प्रीलिम्स, मेंस, टू सम एक्सटेंट इंटरव्यू ऑल्सो, स्टैटिक इज द की. स्टैटिक ज़रूर आपको अच्छा कमांड बनाना है. नाउ मॉक टेस्ट पे आते हैं. सो यू मस्ट हैव गिवन और यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अभ्यास या इवन अदर मॉक टेस्ट. सो प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट होल्ड अ फेयरली हाई इंपॉर्टेंस. नंबर 1 इंपॉर्टेंस इज दे हेल्प यू प्रैक्टिस. बिकॉज आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपकी जो किताबें हैं वहीं से आ रहे हैं. क्वेश्चंस आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट, क्वेश्चंस आर इनडायरेक्ट. आपको जो अंडरस्टैंडिंग आपने बिल्ड की है उससे अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे. दिस एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट नॉलेज, दिस कम्स थ्रू प्रैक्टिस. फिर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपने एक चीज़ बहुत सुनी होगी, लॉजिकल एलिमिनेशन. सो कई लोग कहते हैं इट डजंट वर्क, इट्स अ स्कैम, बट ऐसा भी नहीं है. सॉरी, डू यू हैव अ डाउट? सो डाउट्स मैं एक बार बाद में ले लूँगा. सो हाँ, लॉजिकल एलिमिनेशन इन माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स. आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे अच्छे वीडियोस ऑन लॉजिकल एलिमिनेशन. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नॉट जस्ट व्यू देम एज वीडियोज एंड देन होप कि एग्जाम में सडनली काम कर जाएगा. यू हैव टू प्रॉपरली प्रैक्टिस देम. जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, सिर्फ एक वीडियो देखने से काम नहीं चलता है. आपको घर जाके नोट्स बनाने हैं, आपको रिवाइज करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है. अगेन पहले आप प्रैक्टिस खुद से करोगे, सोल्यूशन देखोगे, फिर आप टेस्ट मोड में, हाई प्रेशर मोड में प्रैक्टिस करोगे. सो इट्स अ वेरी लॉजिकल फ्लो थ्रू विच यू मास्टर दिस लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स. अगेन कुछ चीज़ें हो सकता है अब रेलिवेंट ना हो, आप डिफरेंट वीडियोज़ देखोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा. यूट्यूब पे नेचुरली पीपल एक्सपैंड ऑन दीज टेक्निक्स फॉर देयर ओन व्यूअरशिप. कुछ भी डाल देंगे, बोलेंगे कि काम करेगा, बट ऐसा नहीं होता है. You test them on PYQs and then on PYQs is previous year questions. I will be repeating this a lot. PYQs and mock tests. उसके थ्रू आपको आइडिया लगेगा क्या एक्चुअली वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है. फिर अगेन कमिंग बैक टू PYQs, पहले तो यही था कि आप PYQs देख रहे हो टू अंडरस्टैंड द एग्जाम कि क्या पढ़ना है, किस एक्सटेंट तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. नेक्स्ट थिंग इज PYQs बाय देमसेल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. 21 के एग्जाम में मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, वर्बटिम क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, ऑप्शंस भी सेम थे, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन के, तो देखते ही टिक हो गया था. दिस डज हैपन. 14 से 15 में भी हुआ था एक क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट. तो एटलीस्ट लास्ट फ्यू ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर तो रट ही लेना कम से कम. एंड डेफिनेटली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या थीम्स रिपीट हो रही हैं, उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देना. सो प्रीलिम्स में GS में ब्रॉडली यही है. फिर बाद में थोड़ा एग्जाम स्ट्रैटेजी पे भी डील करेंगे. पहले लेट्स गो टू CSAT. अगेन द वेरी फर्स्ट डिस्क्लेमर इज दैट डोंट टेक इट लाइटली. आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो, CSAT हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट. मुझे पर्सनली CSAT में ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ा था बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट भी जब दिए थे, आई वॉज गेटिंग अ कंफर्टेबल स्कोर. बट मैं अपने जो दोस्तों के एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ,
आई विल बिगिन बाय व्हाट मिस्टेक्स नॉट टू मेक इन सीसैट. पहली चीज़ तो यही है, डोंट निग्लेक्ट इट, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड तो ज़रूर कर लेना. सेकेंडली, इफ़ यू आर लुकिंग एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, लास्ट 2-3 साल के ज़रूर देखना. उसके पहले थोड़ा रिलेटिवली ईजी होता था, दैट माइट गिव यू एन इल्यूजनरी कॉन्फिडेंस. लास्ट ईयर का स्पेशली मैथ्स वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो डेफिनेटली गो थ्रू इट. यू कैन देन मेक एन एस्टिमेट अबाउट हाउ मच टाइम टू गिव इन सीसैट. थर्ड थिंग, सीसैट में कई लोग स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि सिर्फ मैथ्स पोर्शन अटेम्प्ट करना है या सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है. दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स, बिकॉज दोनों कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथ्स दोनों ही सेक्शंस में इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस सब कुछ मिलेगा. तो ये प्री फिक्स स्ट्रैटेजी मत जाना कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करूंगा पूरे टाइम. मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, बिकॉज दे थॉट दैट IITian है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, उनने सिर्फ मैथ्स अटेम्प्ट किया फॉर दोज एंटायर 2 hours. कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने ट्राई भी नहीं किया, एंड अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स थ्रू सीसैट. उनका GS निकल रहा था उस साल. तो डेफिनेटली गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस. अगेन, ईजी क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस दोनों सेक्शंस में है, तो छोड़ना तो है ही नहीं. Now the other major mistake people make in CSAT is एग्जाम के वक्त getting stuck on one question. अगर आप लोगों ने मैथ्स का कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया हो, JEE वगैरह, तो ये आइडिया होगा दैट दिस इज अ कॉमन थिंग. एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा लगता है वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, फिर वहीं अटक जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब कितना टाइम लग गया. नाउ इन CSAT you have 80 questions in 2 hours, तो you cannot be giving 5 or 6 minutes per question. बट पता ही नहीं चलेगा कब you have ended up wasting like 10 minutes in that question. फिर भी ऐसा लगेगा कि इतना टाइम दे दिया है, थोड़ा और दे देता हूँ. दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल मेक. दिस इज अगेन कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो इन 2 चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा अटेम्प्टिंग द पेपर. तीसरी चीज़, होना तो नहीं चाहिए, बट पेपर देते वक्त इन दोज 2 hours डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी लैक्स, गिव इट योर बेस्ट. जैसे आप GS का पेपर देंगे, यू विल बी गिविंग इट योर 100%. तो CSAT में लाइटली मत हो जाना. कई बार पता नहीं चलता है, 2-3 क्वेश्चंस कहाँ इधर उधर हो गए, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, कॉम्प्रिहेंशन में एम्बिगुअस आंसर्स होते हैं, वो गलतियाँ कई लोगों से होती हैं. सो दैट कैन कॉस्ट यू 1 full year. अब CSAT को कैसे प्रिपेयर करना है, what I would suggest is have a systematic plan of preparing for CSAT. Don't directly jump into previous year questions. देखने के लिए ठीक है, but practice में don't just start attempting mock tests या previous year questions. एक एक करके type of questions attempt कीजिए, practice कीजिए. Because one thing you will notice in last 5 to 6 years of CSAT, similar type के questions पूछ रहे हैं. कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशंस, कॉमन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. उनको आई थिंक यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ कोचिंग्स का कंपाइलेशन भी होगा, थीम वाइज अरेंज होंगे, हो सकता है यहाँ भी मिलते हों. उनको एक एक करके उठाइए, उनका मेथड समझिए, उनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सब केसेस क्या पॉसिबल हैं उनको देखिए. यू कैन मेक नोट्स इफ़ यू वांट, आई ऑलवेज सजेस्ट दैट. एंड फिर उनको प्रैक्टिस कीजिए. फाइनली आप मॉक टेस्ट पे आइए. नाउ कमिंग टू एग्जाम स्ट्रैटेजी, जो GS के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड CSAT के लिए भी. बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है. एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट योर माइंडसेट, उस पर लास्ट में आते हैं. सो टाइम मैनेजमेंट, अगेन दोनों ही एग्जाम्स में टाइम का आपको क्रंच होने वाला है. 2 घंटे में या तो 100 क्वेश्चन इन GS या 80 इन CSAT, देयर इज गोइंग टू बी एन इशू. स्पेशली इफ़ यू गेट स्टक ऑन द रॉन्ग क्वेश्चन तो और ज़्यादा इशू आएगा. GS की बात करें तो मेरा ये एस्टिमेट रहता था कि मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव राउंड रखूंगा. अराउंड 80 मिनट्स में आई वुड कवर ऑल द क्वेश्चंस. नाउ कवरिंग डज नॉट मीन दैट आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, बट एटलीस्ट एक बेसिक ट्राई कर लिया है. अगेन जो CSAT में कहा वो प्रीलिम्स में भी अप्लाई होता है. डोंट हैव अ प्रीफिक्स स्ट्रैटेजी कि इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा. एंड स्पेशली डोंट स्किप क्वेश्चन विदाउट रीडिंग देम. कई बार मैंने देखा है ऐसा होता है. सो कई बार मैंने देखा है, लेट्स से टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू रियलाइज दैट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. चाहे ये CSAT हो या GS हो. GS में काफ़ी बार ऐसा लगता है कि ये तो टॉपिक मैंने कभी सुना ही नहीं, ये मैं कैसे करूँगा. बट व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू रियलाइज इधर इट्स अ वेरी ऑब्वियस आंसर, या फिर क्वेश्चन में ही कहीं हिंट है जिससे आंसर निकल आता है. अगेन व्हेन यू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट यू विल गेट एन एक्सपीरियंस, बट कीप दिस इन माइंड, कोई क्वेश्चन बिना पढ़े नहीं स्किप करना है. CSAT में तो खासकर, बिकॉज अगेन ना मैथ्स छोड़ना है ना कॉम्प्रिहेंशन. एंड सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, अगेन टाइम मैनेजमेंट, मेरा 80 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस एक राउंड कवर करना है. नाउ कवर मीन्स दैट मैं एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा.
आई विल गिव एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू ईच क्वेश्चन, एंड देन अगर मेरे से हो रहा है तो थोड़ा और टाइम लगा के दे दिया, अगर नहीं हो रहा है तो आई विल स्किप इट फॉर लेटर। बट ये 30 सेकेंड्स दे देता था टू चेक कि कुछ ना कुछ शायद हिंट लग जाए, किसी ना किसी तरह से आंसर सॉल्व हो जाए। 80 मिनट्स के बाद मैं OMR भरता था, एंड देन अगेन आई वुड कम बैक टू द डाउटफुल क्वेश्चंस। तो ना हाउ डिड आई गो अबाउट दिस? मैं मार्क करता था क्वेश्चन पे श्योर या टेंटेटिव या फिर डाउटफुल। नाउ श्योर, जो मैंने क्वेश्चन लेट्स से मैं 1 to 100 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे लगा जो मैं आंसर आया है आई एम श्योर अबाउट दिस, या आई डोंट वांट टू रीचेक माय आंसर, बिकॉज अगेन यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज एक्चुअली हम श्योर बहुत कम आंसर्स के बारे में होते हैं। इतना डिफिकल्ट हो गया है, इतने रैंडम हो गए हैं, इट्स ओनली दैट यू कैन डिसाइड दैट यू डोंट वांट टू रीचेक दैट आंसर। अगेन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अपने आंसर्स पे डाउट होता है। इवन इन अ बेसिक इकोनॉमी क्वेश्चन यू विल स्टार्ट टू डाउट योर सेल्फ। तो खुद ही को एक डेडलाइन या फिर एक कंट्रोल बनाना होता है, सो दैट यू डोंट एंड अप वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन द बेसिक क्वेश्चंस। सो अगेन मैं श्योर मार्क कर देता था, ऐसे एक लिख दिया उस क्वेश्चन के सामने, सो दैट आई नो दैट इस क्वेश्चन को रिविजिट नहीं करना है, अब जब मार्क करूंगा सीधा मार्क करूंगा। टेंटेटिव एंड डाउटफुल वही थे, टेंटेटिव जहाँ आंसर आ गया है बट आई वॉन्ट टू रीचेक, बिकॉज कई बार होगा यू थिंक इट्स राइट बट यू हैव स्लाइट डाउट। डाउट वो क्वेश्चन हैं जो हुए ही नहीं, उनको तो रिविजिट करना ही करना है। सो दैट इज अगेन वो 80 मिनट्स के बाद ही मैं वो करूँगा। पहले 80 मिनट्स के बाद ये श्योर क्वेश्चंस को OMR में मार्क कर दिया, देन आई रिविजिट द टेंटेटिव एंड डाउटफुल क्वेश्चन। OMR का अगेन मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट आई हैड डन इज जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया OMR में मार्क। व्हाट आर द इशू आई रियलाइज्ड इन दैट इज बहुत केस में डाउट होता है, आप हेजिटेट करते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया, इसको मार्क करूँ या ना करूँ, इवन इन बेसिक क्वेश्चंस। उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो सेकेंड अटेम्प्ट में आई डिसाइडेड कुछ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ बनाऊंगा। वन डिस्क्लेमर, कुछ भी स्ट्रैटेजी आप कर रहे हो मॉक टेस्ट में ज़रूर ट्राई करना। डोंट मेक अ स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्टली गो टू द एग्जाम विद दैट। आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेक करनी है, कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे, आपके लिए सही है या नहीं। सो अगेन मेरा तो रहता था कि मैं सीधा 1 to 100 उस ऑर्डर में अटेम्प्ट करूँगा। कुछ लोगों का डिफरेंट होता है, कुछ लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ लोग अपने फेवरेट सब ईजियर सब्जेक्ट्स को पहले अप्रोच करते हैं। मेरा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग था, एंड अगेन 80 मिनट्स करने हैं तो मुझे पता है लेट्स से 25 क्वेश्चन आई हैव टू रीच बाय 20 मिनट्स। वॉच ज़रूर देखते रहिएगा, बोथ इन GS एंड CSAT, पता नहीं चलता है कब टाइम निकल जाता है। क्वेश्चन सिलेक्शन अगेन मेरा तो वही है दैट 1 to 100 सारे अप्रोच करने हैं, देखना है कि हो रहा है या नहीं, बिना देखे नहीं छोड़ना है। Now coming to mindset, this is very important for both GS and CSAT. Not to put it simply, but exam के दिन शॉक लगता ही है। आप कितना भी प्रिपेयर्ड हो, एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है जो आपको शॉक दे देता है। इट कैन बी अ न्यू पैटर्न, इट कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इट कैन इवन बी द एग्जाम सेंटर। कई बार एग्जाम सेंटर में जूते उतरवा देते हैं। सो एनी काइंड ऑफ थिंग कैन गिव यू अ शॉक विच मे मेक यू एंक्शियस। ऑलरेडी टेंशन तो होती है प्रीलिम्स के दिन पे, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, नंबर 1, कि कुछ भी आ सकता है। दूसरी चीज़, अपने आप को ये नहीं डाउट करना है कि हैव यू स्टडीड इनफ और नॉट। यू विल नेवर फील दैट यू हैव स्टडीड इनफ। अभी भी मेरे से पूछोगे, मुझे लगेगा कि और पढ़ा जा सकता था फॉर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग। सो एग्जाम दिन पे यू हैव टू ट्रस्ट दैट जो भी पढ़ा है दैट इज इनफ। एंड आज सिर्फ ये मैटर करता है कि मैं एग्जाम में अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। सो ये माइंडसेट जरूर जाइएगा। नंबर 1, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। दूसरा चीज़, आपको मैक्सिमाइज करना है। दिस इज द वर्ड आई यूजुअली यूज, इवन खुद से जब बात करता था आई यूज टू टेल माई सेल्फ दिस। ब्लैक कलर विजिबल है क्या? वैसे तो जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, बट एनीवे। हाँ, सो द ओके परफेक्ट। हाँ, सो व्हाट आई यूज टू टेल माई सेल्फ, ये खासकर मैथ्स ऑप्शनल में मैं अपने आप को बोलता था, बट आई डोंट थिंक एवरीवन हैज़ दैट। जब आप एग्जाम देने आ चुके हैं, एग्जाम सेंटर में भी एंटर कर चुके हैं, यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। एग्जाम में लेट्स से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, इवन सिंपल क्वेश्चन आ गए जो आपको नहीं आता, उस मोमेंट पे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, डाउट नहीं करना है। बस ये सोचना है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप कैसे और अच्छा कर सकते हैं। अगेन 100 क्वेश्चन है तो यू हैव टू रिमेंबर एवरी क्वेश्चन कैरीज द सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स। अगर पॉलिटी का एक सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो अगले क्वेश्चन पे जाइए, शायद थोड़ा टाइम लगा के, कुछ सोच के, कुछ लॉजिक लगा के आंसर आ जाए। सो 100 क्वेश्चन ये ज़रूर याद रखिएगा, पेपर के वक्त डिसअपॉइंट नहीं होना है। यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। कट ऑफ आई थिंक इस बार 75 था 100 क्वेश्चंस में से, दैट्स हार्डली लाइक 38 क्वेश्चंस करेक्ट।
नेचुरली अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, बट दिस माइंडसेट यू हैव टू मेंटेन। एग्जाम के वक्त अपना बेस्ट देना है। अगेन सीसैट में भी कुछ लोगों के साथ क्या होता है, सुबह के पेपर अगर अच्छा नहीं गया तो सीसैट में भी वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एंड फिर कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है लोगों का, दैट डिस्पाइट बीइंग डिसअपॉइंटेड इन जीएस, उनका जीएस क्लियर हो गया, बट बिकॉज दे डिडंट गिव सीसैट विद दैट सीरियसनेस, सीसैट नहीं क्लियर हुआ। तो वो भी अच्छे से करना है। सो आई थिंक दिस ब्रॉडली कवर्स प्रिलिम्स। बाकी डाउट्स होंगे आप पूछेंगे। तो मेंस पे आते हैं, बिगिनिंग विथ एसे। सो पहले मैं बता देता हूँ दैट मेरे एसे में दोनों साल एवरेज मार्क्स ही थे, सो आई विल नॉट टॉक टू मच अबाउट इट। जीएस में मेरे दोनों साल काफ़ी हाई थे, उस पर मैं एम्फेसाइज करूँगा। एसे के दो एस्पेक्ट्स हो गए। नंबर वन इज सो टू से अ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, कि ऐसे लिखना कैसे है। फर्स्ट थिंग आई विल रिकमेंड इज टॉपर कॉपीज देख लीजिएगा। ये चीज़ जीएस में भी मैं बहुत बार बोलूँगा। टॉपर कॉपीज विल गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर, व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स आर रिवॉर्डेड। आपको क्लास में कुछ बोलेंगे, आपको सीनियर्स कुछ बोलेंगे, बट जो टॉपर कॉपीज में दिख रहा है दैट इज़ अ वेरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फॉर यू, कि किसी ने ऐसा लिखा एग्जाम में तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए। अगेन टॉपर कॉपीज में भी एक चीज़ होती है, डोंट जस्ट लुक एट टॉपर कॉपीज बाय रैंक। हो सकता है कि रैंक 3 की रैंक ऑप्शनल के कारण आई हो, जीएस में रिलेटिवली कम हो, तो लुक एट टॉपर कॉपीज बाय मार्क्स। लेट्स से जीएस 1 में कोई टॉपर रहा बट उसकी रैंक 100 रही हो, तो टेंडेंसी होती है कि वहाँ तक चेक ही नहीं करते। जीएस 4 में खासकर ये बहुत होता है, रैंक इवन रैंक 50 में हैव एक्सट्रीमली हाई मार्क्स इन एथिक्स। तो ये मार्कशीट्स आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से आंसर लिखना है। नेचुरली इफ़ यू स्टार्टिंग प्रेप राइट नाउ तो उस लेवल के आंसर्स नहीं होते हैं, ग्रेजुअली वर्क करते हैं। कमिंग बैक टू एसे, तो टॉपर कॉपीज से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे एग्जैक्टली कैसे ब्रॉडली कैसे लिखना है। एक इंट्रोडक्शन होगा, एक बॉडी होगी, एक कंक्लूजन होगा। वो तो आई थिंक जीएस में भी आप लोगों को पता ही होगा, उतना होता है। सो आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू स्टॉप एंड आस्क, सब लोग प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं या फिर कुछ लोगों ने अभी डिसाइड ही नहीं किया एग्जाम देना है या नहीं? Everyone has started. Okay, so this is relevant to everyone, ना? I'll assume it's a yes. तो okay. ऐसे अगेन स्ट्रक्चरल पार्ट्स क्लियर हो गए, इंट्रोडक्शन आपको देना है, बॉडी देनी है, कंक्लूजन। सबसे बड़ी चीज़ आजकल ऐसे में क्या होती है, टॉपिक्स ही बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। अर्लियर दे यूज्ड टू गिव वन ऐसे फ्रॉम अ फिलोसफिकल टॉपिक, वन फ्रॉम अ जीएस टॉपिक। आजकल दोनों ही फिलोसफिकल आ रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक्स। लास्ट ईयर एक टॉपिक था, अ स्माइल इज़ द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज़। तो पेपर में देख के क्या ही दिमाग में आएगा, बट आपको आठ टॉपिक्स होते हैं, आपको 4 में से एक चूज करना है फ्रॉम सेक्शन ए, 4 में से एक फ्रॉम सेक्शन बी। वेरी फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक। नाउ द थिंग इन एसे इज दैट यू आर नॉट गिवन अ क्वेश्चन, यू आर नॉट टोल्ड टू जस्टिफाई दिस, सपोर्ट दिस, टू आर्ग्यू अबाउट दिस। बस टॉपिक लिख दिया है, कोट लिख दिया है, बाकी आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एन एसे इज दैट यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक, बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं करना है। अदरवाइज अगेन ऐसे में एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, मार्क्स रेंज वेरीज अ लॉट। लोगों को 50s में भी आते हैं, लोगों को 150s में भी आते हैं फॉर दैट सिंपल ऐसे पेपर ऑफ 250 मार्क्स विच इज़ यूजुअली कंसिडर्ड अ लो एफर्ट पेपर। तो जो बेसिक गाइडलाइंस सिलेबस में भी हैं ऐसे की, उनको ज़रूर देखिएगा। स्टिक टू द टॉपिक, राइट इन अ लॉजिकल कोहेरेंट मैनर, आई थिंक लॉजिकल बेस्ड जजमेंट और जस्टिफिकेशन। बट अगेन उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ऐसे के टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। ब्रॉड अप्रोच रिमेन्स, टॉपिक आपने पढ़ लिया, टॉपिक को समझ लीजिए। अगेन लेट्स से अ टॉपिक इज नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट, तो उसका बेसिक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि एक्सप्लोरेशन मैटर्स। कुछ लोग एक्सप्लोर करते हैं, इवन इफ सीमिंगली देर लॉस्ट दे मे फाइंड समथिंग फ्रूटफुल। टॉपिक आपने समझ लिया, फिर आप उसको थोड़ा ब्रॉड थीम्स में डिवाइड कीजिए, जिनको हम डायमेंशंस कहते हैं। सो वन डायमेंशन कुड बी दैट सम पीपल, दैट वाई डू पीपल वॉन्डर, देन व्हाट डू पीपल गेट व्हेन दे वॉन्डर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन। लेट्स से हमने एग्जाम्पल दे दिया दैट किसी ना किसी ने इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट इज व्हाट लेड टू सिविलाइजेशन एज वी नो इट टुडे। देन यू कैन प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो दैट पीपल हु डू वॉन्डर ऑफन डू गेट लॉस्ट, बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। सो द आइडिया इज टू अप्रोच इट फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल डायमेंशंस। ये पहली चीज़ हो गई अबाउट थिंकिंग व्हाट टू राइट। नाउ फिर आप एक एक अप्रोच ले लोगे, एक एक डायमेंशन ले लोगे, उसके अंडर आर्ग्यूमेंट्स आप बनाओगे, क्या लिखना है। लेट्स से व्हाई डू पीपल एक्सप्लोर, उसमें 5-6 पॉइंट्स आपने सोच लिए, एग्जाम्पल सोच लिए। नाउ हाउ डू यू राइट, तो इंट्रोडक्शन के लिए यूजुअली बोला जाता है एनेक्डोट्स या कुछ स्टोरीज, दे आर कंसिडर्ड गुड। इवन कोट्स से बिगिन किया जा सकता है।
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक. एकदम ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को लगे टॉपिक कुछ और है, आप कुछ और लिख रहे हैं. इंट्रोडक्शन एक ब्रॉड आपने दे दिया, देन यू अप्रोच द एक्चुअल पार्ट ऑफ द एसे. अब इसमें सिलेबस में ही कुछ चीज़ें लिखी हैं. नंबर वन, इट हैज़ टू बी अ लॉजिकल फ्लो. अगेन डायमेंशंस हमने डिस्कवर किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप पहले सोल्यूशंस दे रहे हैं फिर आप पूछ रहे हैं इश्यूज़ क्या हैं. पहले इश्यूज़ दोगे फिर सोल्यूशंस. सो ऐसे ही लॉजिकल फ्लो मेंटेन करना है. देन राइटिंग ईच सब डायमेंशन और सब थीम, उसमें भी एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल वन पैरा टू अनदर पैरा ट्रांजिशंस होते हैं. आप अगेन टॉपर कॉपीज़ देखेंगे तो एक रफ आइडिया उसका लग ही जाएगा. देन यू विल प्रैक्टिस, तो खुद भी समझ आएगा कहाँ आप एयर कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूव करना है. कंक्लूजन अगेन या तो सम अप कर दिया कि क्या क्या बोला है या फिर एक वे फॉरवर्ड दे दिया. कुछ इनोवेटिव भी डाल सकते हैं. मैंने इस बार ऐसे के एंड में एक स्पीच लिखी थी जो मैं याद करके गया था, जॉन एफ कैनेडी की. बट अगेन मेरे एवरेज मार्क्स आए तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा. दिस इज स्ट्रक्चरल पार्ट. नॉन स्ट्रक्चरल की बात करें दैट हाउ डू यू गेट हाई मार्क्स इन ऐसे, तो अगेन व्हाट आई हैव मेंशन्ड, ऐसे थोड़ा रिस्की है. पीपल गेट हाई मार्क्स ऑल्सो, लो मार्क्स ऑल्सो. ब्रॉडली व्हाट आई हैव सीन इज थोड़ा यूनिकनेस, थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीवन राइट्स, दैट सीम्स टू हेल्प पीपल. एंड अगेन स्टिकिंग टू द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, ये तो करना ही है. इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ट्रांजिशन, लॉजिकल फ्लो. Some things that you can do, you can add more quotes to your essay, more unique examples. अब कुछ examples जो आप GS में पढ़ेंगे वो बहुत ही common हो जाएंगे, सब लोग लिखेंगे. Unique examples from different dimensions. अब even philosophical essay में आप sports का example दे सकते हो, science का example दे सकते हो, तो different type के examples दे दिए. That usually considered to help you. कई बार books या authors को आप reference कर सकते हो. Let's say Paulo Coelho Alchemist आपने mention कर दी that in the Alchemist Paulo Coelho talks about ... and फिर अपना argument support किया. These are things that can help you improve your score slightly. Again, topper copies should be your reference. उससे ही समझ आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है. So for essay this is about it. GS पे आते हैं. So GS का पहले तो I think सबको पता होगा 1, 2, 3, 4 4 different papers होते हैं. One is broadly history, geography, society. 2 is polity, governance, international relations. 3 में economy है, agriculture, security, science and tech. 4 is ethics. 4 को थोड़ा differently भी बताऊंगा for 2 reasons. Number 1, it is different from 1, 2 and 3. Secondly, मेरे इसमें काफ़ी अच्छे आए हैं 2 बार. So now इसकी बात करें तो एक तो हो गई basic, कैसे करना है. दूसरा हो गया further enhancing your score. बेसिक में 3-4 चीज़ें आती हैं. सिलेबस कैसे उठाना है, कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, फिर टेस्ट्स भी आ गए. सबसे पहली चीज़, सिलेबस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 2 and 3. 1 में थोड़ा सा इशू क्या है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी को बस ब्रॉड टर्म्स में लिख दिया है. 2 and 3 में क्या है, सिलेबस को बहुत ही माइक्रो लेवल पे बताया गया है. लेट्स से एग्रीकल्चर 3 में सिलेबस में तो उसके सारे पॉसिबल टॉपिक्स बताए गए हैं. मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फूड सिक्योरिटी, PDS, MSP, सब्सिडीज, सब कुछ बताया गया है. एंड क्वेश्चन डायरेक्टली उससे आता है. दिस इज समथिंग पीपल ओवरलुक. आई हैव सीन मेनी इवन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट फोकस इन दिस मैनर. GS3 में अगेन आई थिंक इसी साल क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड, एंड वो डायरेक्टली सिलेबस में है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रियली कैपिटलाइज ऑन. सिलेबस सबसे पहले देख लेना. GS 1, 2, 3, 4 का लोग तो कहते हैं कि सिलेबस रटा होना चाहिए, एंड टू सम एक्सटेंट आई एग्री, बिकॉज मेरे तो नोट्स ही मैंने सिलेबस के टॉपिक्स वाइज बनाए थे. नाउ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग एक बार सिलेबस की हो गई, देन नेचुरली यू विल पिक इट अप वन बाय वन, क्लासेस में या फिर खुद से. बेसिक बुक्स हो गई, इवन टॉपर नोट्स भी रेफर किए जा सकते हैं इंडिविजुअली. मे बी इनिशियली आप या तो क्लास करोगे या फिर जो भी बेसिक बुक्स हैं, अगेन लक्ष्मीकांत हो गई, इकोनॉमी की कुछ हो गई, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली. देन व्हाट आई रिकमेंड इज जो सिलेबस के माइक्रो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके उठाओ, उन पे नोट्स बनाओ. अगेन एग्रीकल्चर आपने एज अ टेक्स्ट बुक तो पढ़ लिया, अब जो सिलेबस में मेंशन है मार्केटिंग, स्टोरेज वगैरह, उनको एक एक करके हेडिंग बनाओ और उन पे नोट्स बनाओ. नाउ नोट्स में क्या होता है, व्हेन यू विल मेक नोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल बी वेरी बल्की, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव तो बनाना ही है, बट वो बहुत बड़े बन जाएंगे. एंड बाद में रिवाइज आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, बिकॉज फॉर दिस एग्जाम रिविजन इज अ मस्ट इन ऑल 3 स्टेजेस. तो मैं क्या करता था, एक राउंड ऑफ नोट्स बनाने के बाद मैं उन्हीं नोट्स से एक और नोट्स बनाता था, व्हाट आई कॉल्ड माइक्रो नोट्स. तो लेट्स से अगर मेरे एथिक्स के फर्स्ट राउंड ऑफ नोट्स 150 पेजेस के थे, लेट्स से 500 पेज की बुक पढ़ी, उससे 150 पेज के नोट्स बनाए,
फिर इससे माइक्रो नोट्स हार्डली 10 to 15 पेजेस के. This allowed me 4-5 revisions even in those 2 to 3 months between prelims and mains. This has helped me a lot, especially because मेरा optional भी काफ़ी बल्कि था. यहाँ पे भी I think geography optional वगैरह होंगे जो काफ़ी बल्कि होता है. तो this is something you can consider if it suits you. नोट्स भी कैसे बनाने हैं तो टॉपर नोट ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा लोग कैसे बना रहे हैं. बट वन थिंग आई विल अगेन री एम्फेसाइज इज सिलेबस के माइक्रो टॉपिक्स को उठा के नोट्स बनाना. नाउ नोट्स में क्या होना चाहिए, अगेन इनिशियली आप बनाओगे तो इट विल नॉट बी परफेक्ट इन एनी वे एंड दैट्स टोटली फाइन. हो सकता है आप पैराग्राफ्स में लिख रहे हो या फिर काफ़ी कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी लिख रहे हो. उन नोट्स से जब आप रिफाइन करोगे अगेन थ्रू एक्सपीरियंस, व्हाट आई सेड अबाउट गेनिंग क्लैरिटी इन दिस एग्जाम, PYQs आपको देखते रहना है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. थ्रू दैट यू विल रियलाइज दैट सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स किस एक्सटेंट तक करना है उस पर भी अभी आएंगे. अकॉर्डिंगली यू विल मेक योर नोट्स. वन थिंग इज इट हैज़ टू बी कंसाइज, दूसरा मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी पॉइंट फॉर्म एंड ऑर्गेनाइज्ड. अगर आपका गवर्नेंस का टॉपिक है तो उसकी सारी चीज़ें एक ही जगह पे होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि पहले आपने बुक से नोट्स बनाए तो उसके एक नोट्स हैं, फिर आपने कहीं और से नोट्स बनाए तो उसके सेपरेट नोट्स हैं. टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए. जब हम एनहांसिंग में बात करेंगे तो वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, उसके नोट्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. सो बेसिक सिलेबस आपने कवर कर लिया फ्रॉम विच एवर सोर्स, नोट्स बना लिए, फिर उसको रिवाइज करना होता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स आंसर राइटिंग कितनी करनी है, टेस्ट कितने करने हैं, कब से करनी है. आई फील अगर आपने एक भी टॉपिक कर लिया है तो उसकी आंसर राइटिंग आप शुरू कर सकते हो. PYQs उठा के उन क्वेश्चंस को खुद से लिख लो. इनिशियली इवैल्यूएशन नहीं होगा बट खुद से भी एक आइडिया तो लगेगा, आंसर लिख पा रहा हूँ या नहीं, टाइम कितना लग रहा है, कंस्ट्रेंट क्या है. दिस इज वन थिंग दैट विल हेल्प यू इन ऑल स्टेजेस टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट, इवन इफ इट इज लेट्स से CSAT. कंस्ट्रेंट क्या है कि आपकी मैथ्स वीक है या फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपने गलत ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए. मेंस में आप देखेंगे अगेन राइटिंग स्पीड कम है या कंटेंट नहीं है या याद नहीं आ रहा है या नोट्स ही नहीं है, तो दैट यू हैव टू रिकग्नाइज एंड अकॉर्डिंगली यू विल रेक्टिफाई. नाउ अगेन आंसर राइटिंग इनिशियली आप खुद से भी कर सकते हैं. वन थिंग अगेन यू कैन डू इज लुक एट टॉपर कॉपीज, कंपेयर करो क्या उसके में है उनके में है जो आपके में नहीं है, अकॉर्डिंगली यू विल इम्प्रूव. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइक हेडिंग्स कैसे बनाना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, स्ट्रक्चर कैसे करना है, ऑर्गेनाइज अपने आंसर को, ये चीज़ें ओवर टाइम आएंगी. इनिशियली ना भी हो तो बिल्कुल भी इशू नहीं है. देन टेस्ट की बात आई. अगेन टेस्ट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ आंसर राइटिंग. एक जो डिफरेंस है 3 घंटे में लिखना है 20 क्वेश्चंस. मेंस में ये काफ़ी बड़ा इशू आता है, मेनी पीपल आर नॉट एबल टू कंप्लीट द एग्जाम. तो अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं थोड़ा एज वहीं मिल जाता है. सो अगेन हैविंग अ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, वो यहाँ पे आता हूँ, दैट विल हेल्प यू. बट अगर आप मॉक टेस्ट भी दोगे तो आपको ब्रॉड एक्सपीरियंस आता रहेगा कि अगेन आपको कहाँ कंस्ट्रेंट आ रहा है, कंटेंट ही नहीं है या टाइम सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है. सो आई थिंक बेसिक ऑफ GS एक बार कवर हो गया. पेपर वाइज भी अभी डिस्कस करूँगा. कमिंग टू हाउ यू एनहांस योर स्कोर, तो एक तो यही हो गया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स. अगेन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आई हैड 463 मार्क्स लास्ट ईयर विच वॉज अमंग्स द हाइस्ट एंड 450 दिस टाइम विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मैं तो बहुत ज़्यादा लिखता था. एंड हाउ आई वॉज एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ माई नोट्स. नंबर 1 सिलेबस से कनेक्टेड थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे नोट्स में वो डायरेक्ट है, आई जस्ट हैव टू रेप्लिकेट व्हाट्स देयर. दूसरी चीज़ कंसाइज थे तो रिविजन बहुत कर पाता था, दैट अलाउड मी टू रिकॉल ड्यूरिंग एग्जाम. पॉइंट फॉर्म थे तो अगेन जो नोट्स में डायरेक्टली वो लिख देना एग्जाम में. ऑर्गेनाइज थे, दिस इज व्हाट विल हेल्प यू रिकॉल. वैल्यू एडिशन में भी आपने आई थिंक शायद सुना ही हो, कमिटीज़ लिखी जाती हैं कई बार आंसर में, डेटा होता है, लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह. सो इशू एक क्या आता है, लोगों के नोट्स में तो होता है बट एक्चुअल एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं. सो फॉर दिस इफ दीज आर ऑर्गेनाइज्ड, लेट्स से सिक्योरिटी हो गया, ये आपका नोट्स का सिक्योरिटी का हेडिंग है, तो यहीं पे आपने लिखा है कौन सी कमेटी है, लेट्स से नरेश चंद्र कमेटी, शेकेतकर डिफेंस रिफॉर्म, कौन सा आर्टिकल रेलिवेंट है, कुछ डेटा आ गया, कुछ अगर जजमेंट हो, सारे एक साथ हो तो आप इजीली याद कर पाएंगे. लास्ट 2-3 दिन में आप रिवाइज भी कर पाएंगे और फिर एग्जाम में यूज़ हो पाएगा. नोट्स के बारे में बिगेस्ट थिंग इज देयर एप्लीकेबिलिटी इन द एक्चुअल एग्जाम. अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं बट आपको एग्जाम में नहीं हेल्प कर पा रहे तो कोई पॉइंट ही नहीं है. नोट्स ऐसे होने चाहिए जो एग्जाम में डायरेक्टली रेलेवेंट हो,
जिनको आप रिवाइज कर पाएँ और आपको एक्चुअल एग्जाम में वो यूज़ कर पाएँ. Again, I think test is covered. Coming back to value addition. So, value addition में number one, what is it? Basically आपने आंसर लिख दिया, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें लेट्स से 10 में से 3 मार्क्स मिल गए, तो 4 मार्क्स कैसे करे जा सकते हैं. एक तो ये हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा के, जिसकी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी. दूसरी अप्रोच होती है थोड़ा वैल्यू एडिशन. नाउ दिस कैन मीन एग्जाम्पल्स, this can mean keywords, this can mean data. एक जो कॉमन चीज़ होती है कमिटीज, स्पेशली इन GS3. एक होता है लैंडमार्क जजमेंट्स, ये GS2 में खासकर बहुत है. एथिक्स में आप आओगे तो थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज वगैरह जो कि पढ़ते भी हैं बट अलग से भी करे जा सकते हैं. नाउ इनको आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करो, या तो एज अ सपोर्ट टू योर पॉइंट्स या फिर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में. मैं पर्टिकुलरली इंट्रो और कंक्लूजन में ट्राई करता था ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ. तो व्हाट आई फील इज़ दे टेल द एग्जामिनर कि दिस स्टूडेंट डिजर्व स्लाइटली मोर मार्क्स, चाहे वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट या बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आपको आंसर में हेल्प ना कर रहे हों. जस्ट द फैक्ट दैट आपने एक कमेटी लिखी है, एग्जामिनर नोज दैट दिस स्टूडेंट हैज़ पुट इन मोर एफर्ट, इसको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए. सो ये आपको पहले तो प्रिपेयर करना है. नाउ इसके कैसे करना है, एक तो हो गया कोचिंग्स आपको कंपाइलेशंस देंगी, दूसरा हो गया टॉपर नोट्स, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएंगे. तीसरी चीज़ टॉपर कॉपीज. नाउ टॉपर कॉपीज इज समथिंग दैट हैज़ इमेंसली हेल्प मी इन माई मेन्स GS. टॉपर कॉपीज अब आप देखोगे, टॉपर कॉपीज अगेन आई एम रिपीटिंग दैट देखते रहना, कई बार देखना. The important thing is don't just use topper copies as a source of analyzing. बस ये नहीं देखना है कि कैसे लिखते हैं टॉपर्स, यूज इट एज अ सोर्स ऑफ कंटेंट. बिकॉज टॉपर कॉपीज में क्या है, क्वेश्चन है, टॉपर की जो पूरी लर्निंग है उनने 3-4 साल में क्रिस्टलाइज की है, वो उन्हें आंसर में लिखा है. इससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इससे आपको वैल्यू एडिशन भी मिलेगा, इससे आपको अप्रोच तो मिलेगी ही, बट ऐसा भी मिलेगा कि रैंडम क्वेश्चंस को वो कैसे हैंडल कर रहे हैं. रैंडम क्वेश्चंस को हैंडल करने का एक मेथड होता है यूनिवर्सल या कुछ जेनेरिक पॉइंट्स लिख देना. लेट्स से कोई GS2 का टॉपिक है अबाउट सम गवर्नमेंट स्कीम, तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, हैव अ बेटर मैपिंग ऑफ बेनिफिशियरीज, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स. इस टाइप के कुछ सिंपल पॉइंट्स होते हैं, ये आप टॉपर कॉपी से काफ़ी सीखेंगे. इनका मैं तो नोट्स बना लेता था, अलग से नोट डाउन करता था. एथिक्स में खासकर मैंने अपने काफ़ी एक्सटेंट तक नोट्स ही टॉपर कॉपी से बनाए. अगेन द आइडिया रिमेन्स, या तो डायरेक्टली आप इनको यूज़ कर पाओगे एग्जाम में, या फिर थोड़ा रिसाइकल करके मॉडिफाई करके यूज़ करोगे. इधर हो सकता है टॉपर ने किसी क्वेश्चन में यूज़ किया हो और कोई पॉइंट निकला हो, स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड. अब ये चीज़ आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, GS2 में, GS1 में, GS3 में. तो आप अगर लिस्ट बना लोगे, लेट्स से आपने ऐसे 100 चीज़ों की लिस्ट बना ली, तो कम से कम 10 यूज़फुल होंगे. एंड ये चीज़ तो हमेशा ही रहेगी दैट जो आप पढ़ रहे हो सब कुछ रेलिवेंट नहीं रहेगा, बट दिस विल गिव यू वेरी गुड प्रोपोर्शनल रिवॉर्ड. टॉपर कॉपीज कुछ रिकमेंड भी कर देता हूँ. श्रुति शर्मा मैम, रैंक 1 लास्ट ईयर. इशिता किशोर मैम की GS1-2 अच्छी हैं. फिर स्पेसिफिकली एथिक्स की बात करूँ, श्रुति शर्मा मैम की तो डेफिनेटली देखना. गरिमा लोहिया मैम लास्ट ईयर रैंक 2. मुस्कान डगर मैम लास्ट ईयर रैंक 72 आई थिंक. गुंजिता अग्रवाल मैम लास्ट ईयर 26 रैंक. दिव्या मिश्रा मैम CSE 20 में आई थिंक रैंक 30 थी. विशाखा यादव मैम. बट अगेन लास्ट फ्यू ईयर्स के आप देखोगे टॉपर कॉपीज, तो उसमें एक और एडेड बोनस है कि जो करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी थीम्स चल रही हैं वो भी कवर होंगी, तो आपके वो भी कवर होंगे. एक और चीज़ आप बाद में भी कर सकते हैं कि जैसे आपने टेस्ट दिया तो वहाँ पे भी वो बेस्ट कॉपीज़ अपलोड कर देते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, उससे भी आपको कंटेंट मिलेगा. स्पेशली करंट अफेयर्स कवर करने का वो अच्छा तरीका है. नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स कैसे करना है फॉर मेन स्पेसिफिकली. ओके, आई जस्ट रियलाइज मैंने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स नहीं कवर किया था, वो मैं यहाँ कर देता हूँ. प्रीलिम्स CA का जो मेरा ब्रॉड एक्सपीरियंस रहा है, यू हैव टू बी सेलेक्टिव, बिकॉज आपको यू विल लिटरली बी बॉम्बार्डेड विथ मटेरियल व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स. डेली न्यूज़ समरी मिलेगी, वीकली समरी, मंथली समरी, एवरीथिंग. इवन कंपाइलेशन जो आप देखोगे हर कोचिंग निकालती है, बहुत ही बल्की होते हैं. बट प्रीलिम्स में अगेन द की इज स्टैटिक पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना, करंट अफेयर्स को उस तरह से करना जिस तरह से एग्जाम के लिए रेलिवेंट है इन एन ऑप्टिमल मैनर. सो व्हाट आई मीन बाय बीइंग सेलेक्टिव इज,
वन, यू हैव गेन क्लैरिटी थ्रू PYQs, किस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का CA यूजुअली नहीं आता है, उतना नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन वो भी डिफिकल्ट, बट एनवायरमेंट से करंट अफेयर्स आते हैं, इकोनॉमी से कभी कभी आते हैं, साइंस एंड टेक से आते हैं. सो उन एरियाज पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, नंबर वन. सेकेंडली, किस डेप्थ पे जाना है. लास्ट ईयर आई थिंक क्वेश्चन था ऑन वॉल्बूचिया मेथड, तो बस ये पता होना चाहिए था कि व्हाट इज इट रिलेटेड टू, डेंगू या मलेरिया, ऐसा कुछ था. यू डोंट नीड टू नो इन डेप्थ कि ये कैसे बनाया गया, किसने बनाया, इसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, अनलेस इट्स अ कोर टॉपिक. अब कोविड के टाइम पे वैक्सीन्स था, तो दैट इज़ अ फेयरली प्रिडिक्टेबल टॉपिक, उसको आपको करना है. बट कंपाइलेशन से आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अननेसेसरी डेप्थ में नहीं जाना है. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. सो बीइंग सेलेक्टिव. Second is having a horizontal approach. So what this means is covering more topics with lesser depth. Compilations में मैं क्या करता था, मैं तो इंडेक्स को देखता था, नाम से ही मुझे रफ आइडिया लगता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. अगेन दिस कम्स विद एक्सपीरियंस. फर्स्ट टाइम में मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं रहता था, बट एंड या फिर आप ग्लांस थ्रू कर सकते हो पूरा कंपाइलेशन, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसमें भी बस बेसिक एक दो क्रक्स वाले फैक्ट्स कर लेना. लास्ट थिंग इज टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेते हैं वो यूजुअली. इसमें भी फुल टेस्ट में ज़्यादा बेटर होगा. अगेन ओपन टेस्ट लाइक अभ्यास वगैरह में भी करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूजुअली कवर कर लेते हैं. बट जब आप टेस्ट सीरीज भी देख रहे हो, बी सेलेक्टिव, बी एंड हैव एन हॉरिजॉन्टल अप्रोच. करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर आपको करना है. द हिंदू बेस्ट है स्पेशली फॉर एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक. सो नोट्स डिफरेंट तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं. मैं अपने ऑलमोस्ट सारे नोट्स ऑनलाइन बनाता था, बट वट एवर सूट्स यू. तो द हिंदू में तो मैं टाइप करता था. वट आई केप्ट फॉर माई सेल्फ इज नोट्स कंसाइज रखने हैं, अदरवाइज रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा. तो आई केप्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूल फॉर माई सेल्फ, कोई भी चीज़ का नोट बना रहा हूँ, एक या दो लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पूरे सेंटेंसेस भी नहीं लिखने, सिर्फ शब्द लिखने हैं. उतनी प्रिसीजन अगेन विथ टाइम आएगी कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या नहीं करना है. टेस्ट सीरीज़ या कंपाइलेशन से पढ़ रहा हूँ, टिपिकली मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता था. लैपटॉप या किसी भी डिवाइस पे आसान होता है. न्यूज़पेपर में प्रॉबली यू कैन टेक अ फोटो या जो भी कंफर्टेबल हो. बहुत ज़्यादा टाइम नोट्स बनाने में मत लगाना फॉर प्रीलिम्स. मेंस में नोट्स बनाना इज़ ऑलवेज वर्थ इट. जीएस का तो मैंने इसलिए इन डेप्थ बताया ही था. सो प्रीलिम्स का ब्रॉडली आई थिंक करंट अफेयर्स कवर हो गया. एंड यूट्यूब की सीरीज़ कई आपको मिलेंगी, ये मुझे बहुत हेल्प किया. अगेन दोज काइंड ऑफ सीरीज विच आर सेलेक्टिव एंड वेरी पिन पॉइंटेड. ऐसा नहीं कि वो पर टॉपिक आपको 2-2 मिनट बता रहे हैं, जो टॉपिक ज़्यादा कवर कर रहे हैं, बट जस्ट 1 or 2 की फैक्ट्स. अगेन आप यूट्यूब पे देखोगे आपको मल्टीपल मिलेंगे. 10 मिनट देखना, आपको आइडिया लग जाएगा आपको अच्छा लग रहा है या नहीं. नाउ कमिंग टू मेंस करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे ऑपोजिट है. आपको हॉरिजॉन्टल अप्रोच नहीं रखनी है, फ्यूअर टॉपिक्स करने हैं आपको. मेरा तो था एडिटोरियल कंपाइलेशन पढ़ता था मैं. मेंस के लिए मैं न्यूज़पेपर नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स. एडिटोरियल कंपाइलेशन अगेन मेनी कोचिंग्स रिलीज दिस, ये काफ़ी हेल्प करेगा. दूसरी चीज़ इसके भी नोट्स जब आप बना रहे हो तो सब कुछ मत लिखो, बिकॉज कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो आपके स्टैटिक के टॉपिक से रिलेटेड है. सो वो आपके स्टैटिक के टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको सिर्फ की फैक्ट्स नोट करने हैं जो आपके नोट्स में ऑलरेडी नहीं है. अदरवाइज क्या होगा, लेट्स से एग्रीकल्चर मार्केटिंग के आपके ऑलरेडी नोट्स हैं, फिर ईनाम का टॉपिक आपने पढ़ लिया, या लेट्स से फूड सिक्योरिटी या PM आशा, काफ़ी पॉइंट्स कॉमन होने वाले हैं, तो एक रिडंडेंट एक्सरसाइज हो जाएगी और आपके नोट्स बहुत बल्कि होंगे. कंसाइज नोट्स विल ऑलवेज हेल्प यू हैव मोर रिविजन्स, एंड ऑल्सो ज़्यादा पिन पॉइंटेड होगा तो याद भी बेटर रहेगा. सो अगेन मेंस का एडिटोरियल कंपाइलेशन एंड फुल लेंथ टेस्ट में मेंस में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस में लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ फेयरली हाई. चाहे मैं स्टैटिक की बात करूं या करंट अफेयर्स की. प्रीलिम्स में आई कैन नॉट टेल यू दैट इवन वन क्वेश्चन कैन बी प्रिडिक्टेड थ्रू टेस्ट सीरीज और अदर सोर्सेज. मेंस में एक तो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कई बार फुल लेंथ टेस्ट में कवर हो जाएंगे. इनफैक्ट IR इंटरनेशनल रिलेशंस का तो कुछ लोग कहते हैं दैट टेस्ट ही कर लो, यूजुअली वहीं से आते हैं, बट नेचुरली डोंट लिमिट योर सेल्फ टू दैट. दूसरी चीज़, इवन मेंस में जो स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं वो कई बार डायरेक्टली सिलेबस से आएंगे, थीम से भी आएंगे. नाउ जो इंडिविजुअल पेपर की बात कर रहा था, 2 and 3 में ब्रॉडली जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन पे आप बहुत स्ट्रांग कमांड बना लो तो इट विल हेल्प यू सेल थ्रू. छोटा सा आई थिंक एक्सेप्शन इज पॉलिटी में आप एडिशनल थोड़ा वर्क कर सकते हो, दैट इज PYQs.
PYQ में क्या है, थीम्स करनी है आपको, जो सिलेबस में भी हो सकता है मेंशन ना हो, ऑल्दो GS 2 and 3 में फेयरली वेल लेड आउट सिलेबस है। आप PYQ की भी थीम्स देखोगे, आपको रियलाइज होगा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। नाउ सिमिलर डज नॉट मीन सेम, बट पॉइंट्स रिपीट हो सकते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन पार्लियामेंट पे आया है और इस बार क्वेश्चन आ गया स्टेट लेजिस्लेचर। मेंस में फैक्ट्स नहीं पूछते हैं, एनालाइज करवाते हैं। तो जो चीज़ आपने यहाँ प्रिपेयर की PYQ के थ्रू, वो यहाँ पे भी काम आएगी। इस साल आई थिंक ऐसा ही हुआ था कुछ। 1 की बात करें तो सोसाइटी के टॉपिक्स बहुत वेल लेड आउट हैं एंड अगेन बहुत डायरेक्टली आते हैं। लेट्स से अर्बनाइजेशन वगैरह हो गया, सिलेबस से आपने अगर पढ़ लिया, आपने अपने पॉइंट्स क्रिएट कर लिए, वैल्यू एडिशन क्रिएट कर लिया, तो एग्जाम में बहुत ही स्मूथली आप उनको यूज़ कर पाओगे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में जो इशू है कि नोट्स वेल लेड आउट नहीं है, प्लस ये दोनों बहुत ही बल्कि हैं। मेरी थोड़ी मिनिमलिस्ट अप्रोच थी, स्पेशली टॉपिक्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिकॉज मेरा ऑप्शनल मेरा ज़्यादा बड़ा फोकस था, तो मुझे टाइम कंस्ट्रेंट भी था। आपको हो सकता है डेफिनेटली और ज़्यादा टाइम इस पर लगाना पड़े, बट PYQ थीम्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल हियर। ज्योग्राफी में आप देखोगे ओशन करंट सर्कुलेशन, एयर प्रेशर, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इस टाइप के थीम्स रिपीट हो रहे हैं। इवन वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखोगे वर्ल्ड वॉर्स पे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म पे बार बार आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में पर्शियन या फॉरेन इन्फ्लुएंस पे कई बार आ रहे हैं। उस पर आप PYQ से थीम निकाल के कंटेंट क्रिएट कर लो। तो अगेन कंटेंट कैन बी जस्ट पॉइंट फॉर्म, क्वेश्चन भी ना हो, बस आपने हेडिंग बना दी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, क्या रेलेवेंट चीज़ें हैं, स्पेसिफिक फैक्ट्स भी हो गए एंड कुछ डायमेंशन जो आपको हेल्प कर सकते हैं। नाउ फॉर दिस यू डोंट हैव टू डू ऑल द एफर्ट योरसेल्फ। कई कोचिंग्स रिलीज करती हैं थीम वाइज कंपाइलेशन, ये आपको मिल जाएगा, तो एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू 4 एथिक्स। पहला तो नेचुरली यही है, कोई ना कोई बुक बेसिक आप बुक करोगे तो सारी बुक सिलेबस के ही अकॉर्डिंग रिटन है, सब कुछ कवर होगा। मैंने DK बालाजी सर की बुक की थी, और भी कई सारी बुक्स हैं। दूसरा फिर आता है अगेन खुद के नोट्स बनाओगे आप बुक से एक्सट्रैक्ट करके। नाउ अगेन एथिक्स में एज आई मेंशन टॉपर कॉपीज हेल्प मी द मोस्ट। आपको कन्वेंशनल टॉपिक्स पे भी आपको कंटेंट मिलेगा, वैल्यू एडिशन भी मिलेगा, रैंडम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो भी मिलेगा। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग डोंट जस्ट यूज टॉपर कॉपीज फॉर एनालिसिस, उससे कंटेंट एक्सट्रैक्ट करो। टॉपर कॉपीज आर लिटरली गोल्ड माइंस व्हेन इट कम टू कंटेंट। आप ऐसे सोचो, जो इंसान 3-4 साल से पढ़ रहा है, उसका जो फाइनल रिविजन का नोट्स है वो आपको एक PDF में मिल रहा है। सो दैट एंड अदर थिंग इज इनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मेंस अपने आप में थोड़ा फेयरली प्रिडिक्टेबल है। जो क्वेश्चन टॉपर कॉपी में है उस थीम पे क्वेश्चन आने के चांसेस फेयरली हाई हैं। तो अगर आप एक बहुत अच्छे टॉपर के उसी क्वेश्चन पे आंसर आप पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, तो एक्चुअल एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा विद अ वेरी डायरेक्ट कोरिलेशन। नेक्स्ट एथिक्स में एक चीज़ होती है केस स्टडीज़। ये थोड़ी आजकल काफ़ी लेंदी भी आने लगी हैं, बट द गुड थिंग इज मोस्ट केस स्टडीज दैट आर बीइंग आस्क्ड आर ऑफ द सिमिलर काइंड। लास्ट 5-6 साल की भी देख लो, बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है, एटलीस्ट इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। कई बार एथिकल डिलेमा पूछ लेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन पूछ लेंगे, कंपेयर डिफरेंट ऑप्शंस। क्वेश्चंस ब्रॉडली अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं आई है। तो अगेन इफ़ यू प्रैक्टिस द लास्ट फ्यू ईयर्स केस स्टडीज़ एंड आप टॉपर कॉपीज़ में भी देखोगे तो आपको एक गुड अच्छा ग्रास्प आ जाएगा। बाकी स्पेसिफिक जो होते हैं केस स्टडीज़ में वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे, आपको ऑन स्पॉट सोचना पड़ेगा। बट इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड द ब्रॉड कंटेंट तो बहुत हाई यूटिलिटी उसकी आ जाएगी। केस स्टडीज़ अगेन आप प्रैक्टिस करोगे। नाउ एथिक्स का वैल्यू एडिशन में क्या क्या आता है, एक तो हो गया कीवर्ड्स। नाउ सिंपल स्टफ तो आपको जो भी बुक पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा, थोड़ा और डिग करोगे, अगर कंपाइलेशंस देख लिए, टॉपर नोट्स देख लिए, यू विल गेट सम गुड कीवर्ड्स लाइक मॉरल मायोपिया, फिड्यूशरी ड्यूटी। तो अगेन ये सब यूज़ करोगे अपने आंसर्स में तो ऐसा लगेगा थोड़ा और अच्छे मार्क्स आने चाहिए स्टूडेंट को। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एथिक्स स्पेशली, बाकियों में भी जितना हो पाए लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में नाउ द की इज़ बहुत कंसाइज आपको रखना है। यू कैन नॉट बी गिविंग 2 or 3 लाइन्स जस्ट टू राइटिंग वन एग्जाम्पल, अदरवाइज क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बहुत कम लिख पाओगे। आई थिंक ये सबको पता होगा दैट स्पेस लिमिटेड होती है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपको, यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ तक लिखोगे, फिर कंक्लूजन आ जाएगा, यहाँ इंट्रो भी है। तो अगर आप एग्जाम्पल बहुत बल्कि लिख रहे हो, विच इज़ वॉट विल हैपन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग या तो पर्सनल एग्जाम्पल्स या फिर सम वेरी यूनिक एग्जाम्पल्स,
तो बहुत यूनिक इसलिए इसमें नहीं जाना है, अदरवाइज एग्जामिनर रिलेट ही नहीं कर पाएगा ना। लेट्स से आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हो तो गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल एग्जामिनर विल इजीली अंडरस्टैंड, तो बस आप एक वर्ड 2-3 वर्ड्स में आप लिख दोगे, पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल बनाया, एग्जाम्पल आ गया, तो स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी, बिकॉज अगेन स्पेस बहुत कम होती है सेक्शन ए में। एग्जाम्पल्स इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। अब ये मैंने श्रुति मैम से इंस्पायर होकर एंड गरिमा मैम से भी लेके किया था। नाउ सम थिंग्स विच यू डोंट स्टडी इन द कोर्स, बट लेट्स से अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ समम बोनम, दिस इज समथिंग दैट अगर आप किसी भी कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। द गुड थिंग अबाउट एथिक्स सेक्शन ए इज दैट 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो गवर्नेंस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि GS2 में आपको हेल्प करेगा, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो फेयरली सिमिलर एंड वेल कनेक्टेड हैं, इवन दो टॉपिक टेक्निकली डिफरेंट हैं, लेट्स से इमोशनल इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस, इंट्रोस्पेक्शन, बट उसमें सिमिलर कंटेंट यूज किया जा सकता है। दिस इज वन गुड थिंग अबाउट एथिक्स। इवन वैल्यू एडिशन, मैं तो क्या करता था, मैंने इस बार किया था वैल्यू एडिशन का ही मैंने अलग से पेज बनाया कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या यूज करूंगा, कंक्लूजन में क्या यूज करूंगा। दैट इज समथिंग आई ट्राई टू फोर्सफुली यूज। वैल्यू एडिशन में अगेन ये रहेगा, आपको लगेगा कि ये चीज़ इस क्वेश्चन में रेलेवेंट है या नहीं, बट उसको फोर्सफुली यूज कीजिएगा ताकि अगेन योर आंसर गेट स्लाइटली इम्प्रूव्ड। लेट्स से अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन है, तो SDG 11 इज सस्टेनेबल सिटीज, बस लिख देना कंक्लूजन में, इवन इफ यू थिंक क्वेश्चन इज ऑन समथिंग एल्स, लिख देना। एंड अगेन SDG से याद किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 होते हैं, उनको याद कर लेना, काफ़ी यूजफुल रहेंगे GS 1, 2, 3 सब में। वैल्यू एडिशन आई थिंक दैट इज़ अबाउट इट। GS का ब्रॉडली वो हो गया। ऑप्शनल पे ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा बिकॉज सबका डिफरेंट है, बट 1 और 2 थिंग्स। सबने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया है या डाउट है किसी को? डाउट है, हाँ, ओके। सो सिलेक्शन के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? नंबर 1 इज कितना स्कोर आ रहा है। कुछ ऑप्शनल्स हैं कि इवन हाईएस्ट स्कोर इज लेस देन 260। ओके, ऑप्शनल का रफली बता दूं, 500 का होते हैं 2 पेपर्स, पहले 2 सब्जेक्ट्स होते थे, अब एक ही है। अराउंड 300 इज अ गुड स्कोर, या 280 to 300 ले लो। दिस टाइम आई हैड 311 इन मैथ्स, तो दैट हेल्प मी। मैथ्स में एक स्टूडेंट के 336 भी आए हैं, दैट गिव्स अ ह्यूज एज ओवर अदर्स। फर्स्ट थिंग इज स्कोर देखो उसमें जा रहा है या नहीं। यू माइट थिंक दैट कोई टॉपिक आपका ग्रेजुएशन का है या आपका इंटरेस्ट का है, बट अगर उसमें कभी मार्क्स नहीं आते तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है। दूसरा इज योर स्कोरिंग पोटेंशियल। अब नाउ अगेन मैथ्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल लास्ट 10-12 साल से कंसिस्टेंटली, बट अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो देन कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इंटेंसिव ऑल्सो एंड यू हैव टू बी अमंग्स द बेस्ट टू गेट द हाईएस्ट स्कोर। तीसरी चीज़ हो गई स्टेबिलिटी ऑफ मार्किंग। नाउ ऑप्शनल्स में क्या होता है, कभी कभार ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स में हाईएस्ट स्कोर हो सकता है 300 चला गया, लेट्स से PSIR का एग्जांपल लो, कभी हो सकता है इवन हाईएस्ट स्कोर वेंट ओनली टिल 250 या 260। दिस यूजुअली हैपेंस मोर विथ ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स, बट इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के साथ भी हो सकता है। अगेन आप लास्ट 5-6 साल के ट्रेंड्स देखोगे तो एक रफ आइडिया आएगा। there will sort of be a trade-off between risk and effort. Again, मैथ्स जैसे ऑप्शनल है, एफर्ट बहुत हाई है बट रिस्क कम है, बिकॉज कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स उसमें आए हैं बट एफर्ट भी कॉन्सिक्वेंटली ज़्यादा होता है। कुछ ऑप्शनल सोशो या एंथ्रो, उनमें एफर्ट रिलेटिवली कम है बट रिस्क ज़्यादा है। कभी इवन आई गिव यू माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस, तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 290 to 300 मार्क्स भी जिन लोगों के आए, सेम पीपल नेक्स्ट ईयर गॉट मच लोअर मार्क्स, लेट्स से 250। सेम इंसान विथ मोर एफर्ट गेटिंग लोअर मार्क्स। दिस इज वॉट दिस रिस्क इज अबाउट। नेचुरली ह्यूमैनिटीज़ में अगेन सब्जेक्टिविटी वाला एस्पेक्ट भी रहता ही है। ब्रॉडली मेरे एक्सपीरियंस में ये 3 चीज़ें हैं। 2 और फैक्टर्स रहते हैं, वन इज़ योर इंटरेस्ट, अदर इज़ हाउ बल्कि द ऑप्शनल इज। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये 2 लोअर प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। वाई इंटरेस्ट इज़ नॉट अ प्राइमरी फैक्टर इज़ बिकॉज नंबर 1, जब तक आप ऑप्शनल पूरा स्टार्ट ना करो, पूरा समझ नहीं आता है कि आपको पसंद आने वाला है या नहीं। इवन मैथ्स ऑप्शनल सोचने में इफ़ यू हैव बीन इंटरेस्टेड इन मैथ्स तो लगता है कि मज़ा आएगा, बट इट्स वेरी डिफरेंट। जेई वाला मैथ्स अलग होता था, यहाँ पे ज़्यादा प्रूफ ओरिएंटेड है, ज़्यादा लिखने का है, तो वो डिफरेंट हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़ ओवर टाइम आप हर चीज़ से बोर हो जाते हो, इवन GS ज्योग्राफी वगैरह, बट पढ़ना तो होता ही है। बल्कि को मैं इसीलिए प्रायोरिटी नहीं बना रहा हूँ बिकॉज रिस्क वाला फैक्टर काफ़ी प्रेसिंग चीज़ है। अब मेरे एक सीनियर के साथ हुआ था दैट जिस साल PSIR में अच्छे मार्क्स आए, उस साल अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट गिव दैट अटेम्प्ट। बाकी 2 साल उन्होंने दिया, उस साल अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो बल्कि को
डरिएगा मत, टाइम देना कैन समटाइम्स बी वर्थ इट। अगेन बाकी मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, यू कैन वॉच द रिस्पेक्टिव ऑप्शनल के टॉपर्स का टॉक टू गेट अ गुड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सिर्फ सिलेबस देखने से समझ नहीं आता है कि टॉपिक आपके लिए है या नहीं, बहुत कम आइडिया लग पाता है ना। बाकी ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ जनरल टिप्स, नंबर 1 इज़ PYQs, स्पेशली टेक्निकल ऑप्शन में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुए हैं या थीम्स तो रिपीट होती हैं। दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट की बात है, स्पेशली बाद में क्या होगा, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस हार्डली 3 महीने होते हैं, वहाँ पे क्या करना है ना। मैथ्स ऑप्शनल वाले कई बार ये मिस्टेक करते हैं दैट बिकॉज मैथ्स में मार्क्स आ रहे हैं एंड एफर्ट इन्वॉल्व है तो वो ज़्यादा GS को निगलेक्ट कर देते हैं। मेरा खुद का लास्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैथ्स में आई गॉट जस्ट 243 मार्क्स बट GS में 463 थे लास्ट टाइम, इसलिए आई गॉट अ टॉप 100 रैंक। दिस टाइम दोनों अच्छे हो गए तो और इम्प्रूव हो गया। सो बैलेंस करना, डोंट निगलेक्ट एनीथिंग, ना आपको GS पे ओवर रिलाई करना है ना ऑप्शनल पे, एंड ऐसे पे तो डेफिनेटली ओवर रिलाई नहीं करना है। सो द टेक अवे इज सारे पेपर्स को आपको अच्छे से कवर करना है, किसी पे ओवर रिलाई नहीं करना है, किसी को निगलेक्ट नहीं करना है। बाकी एग्जैक्टली कितना टाइम वगैरह वो अगेन आपके रिस्पेक्टिव ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी आएगी। एक और पैरामीटर आप कंसिडर कर सकते हैं, हाउ मच कंटेंट इज अवेलेबल। अब कुछ ऑप्शनल्स लाइक इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स, उनमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, एक ही कोचिंग टेस्ट सीरीज करा रहा है, एक ही कोचिंग का मटेरियल। कुछ ऑप्शनल में ये कंस्ट्रेंट हो सकता है, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। ब्रॉडली ऑप्शनल पे इतना ही था। मेंस में एक और चीज़ होती है लैंग्वेज पेपर, इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग बट कभी कभी हो जाता है कि कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाते, तो उसको भी एकदम मत निगलेक्ट करना। अगेन जस्ट सी लास्ट फ्यू ईयर्स, 5 भी नहीं वैसे 2-3 भी देख लोगे तो रफ आइडिया आ जाएगा। बेसिकली हमारे लिए हिंदी इंग्लिश होगा, फॉर अदर पीपल इट कैन बी हिंदी की जगह दूसरी रीजनल लैंग्वेज आ जाती है, तो हिंदी का थोड़ा बेसिक देख लेना, बिकॉज कई बार हमारी वोकेबलरी उतनी अच्छी नहीं होती है, हम जो बोलचाल में बात करते हैं दैट इज़ डिफरेंट। समटाइम्स हिंदी के ऐसे में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ जाता है, तो रफ बेसिक आइडिया इवन इफ़ यू गिव अ फ्यू आवर्स इट विल बी फाइन। और एग्जाम के दिन सीरियसली दे देना, ये तो हर एग्जाम पे अप्लाई होता है, CSAT हिंदी इंग्लिश, एग्जाम के वक्त मत लैक्स हो जाना, प्रॉपरली देना। नाउ इंटरव्यू इज़ द फाइनल स्टेज, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। नंबर 1 इज़ व्हेन टू डू इट, व्हाट टू डू इट, कंटेंट क्या है, सोर्सेज क्या होंगे, कैसे करना है, इस पर भी बात कर लेंगे। एंड पर्सनैलिटी फैक्टर, बिकॉज इंटरव्यू इज टेक्निकली कॉल्ड अ पर्सनैलिटी टेस्ट। व्हेन इज योर आफ्टर मेंस, अभी इंटरव्यू का कोई कुछ इशू नहीं लेना है, कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर यू हैव डन विथ योर मेंस, या तो इमीडिएटली बाद या थोड़ा ब्रेक लेके उसके बाद ही शुरू करना है। नाउ इंटरव्यू में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड अ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपके बारे में पूछते हैं, योर हॉबीज़, योर ग्रेजुएशन, वेयर हैव यू स्टडीड, वेयर हैव यू लिव्ड, उनके बारे में फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ टू गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से भोपाल से हो तो भोपाल की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, भोपाल नाम कहाँ से आया, भोपाल के कुछ रूलर्स क्या क्या थे। फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, भोपाल के 5 मेजर इश्यूज बताओ। इफ़ यू आर मेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ भोपाल तो आप 3 सबसे पहले क्या स्टेप्स लोगे, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा करंट अफेयर्स, नाउ करंट अफेयर्स में भी 2-3 चीज़ें होती हैं, अगेन यू हैव टू एनालाइज, फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा नहीं खेलते हैं, बट जो नया एलिमेंट आता है दैट इज़ ऑफ योर ओपिनियन। तो करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है, नॉट जस्ट कि व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट्स, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व, बट व्हाट विल बी योर ओपिनियन। ये मेंस में नहीं होता है, प्रीलिम्स में नहीं होता है, एंड ये बिल्ड करने में आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। सुनाओ सोर्सेज की बात करूँ, डैफ के लिए तो विकीपीडिया काफ़ी अच्छा रहता है, विकीपीडिया में ब्रॉड आपको सब मिल जाएगा। दूसरा आपको बहुत सारी कोचिंग्स PDFs देंगे, कंपाइलेशन उसमें सब कुछ होगा। फॉर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लासेस बहुत सारी कोचिंग्स फ्री में ही कराती हैं, इंटरव्यू का ऑलमोस्ट सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा, मतलब लीगल रूट से। सो नाउ हाउ डू यू स्टडी, नंबर 1 इज़ डेफिनेटली द रीडिंग एंड रिविजन। दूसरी चीज़ इज मॉक इंटरव्यूज़। नाउ ये यूट्यूब में देखे होंगे आई थिंक, कई लोग तो आई थिंक दृष्टि से ही इंस्पायर होके UPSC देते हैं। सो मॉक इंटरव्यूज़ आप देख भी सकते हो, दे भी सकते हो, मतलब देना है ही इनफैक्ट। मॉक अगेन अभी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मॉक इंटरव्यूज़ आप यूट्यूब पे देखोगे तो इसका भी आइडिया लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी डू यू नीड, हाउ आर यू सपोज टू आंसर, एंड आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे।
खुद आप मॉक इंटरव्यूज़ दोगे, अगेन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा कि आप फॉर्मली बात कर रहे हो या नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, क्या इम्प्रूव करना है। दूसरा व्हाट विल हेल्प यू अलॉट इज़ डिस्कशंस विथ योर फ्रेंड्स। तो अगर आपका कोई साथ वाला दे रहे हो तो या तो कोई टॉपिक उठा लिया, उस पर डिस्कस किया क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या एक दूसरे का 1-to-1 मॉक इंटरव्यू। मेरे साथ तो हुआ था, मैं अपने दोस्त के साथ करता था एंड एक दो क्वेश्चंस रिपीट भी हो गए इन माय एक्चुअल इंटरव्यू। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ पर्सनैलिटी फैक्टर्स 2-3 चीज़ें हैं। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। नाउ दे हैव टोल्ड यू स्टफ लाइक सोशल ट्रेट्स होने चाहिए, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स भी होने चाहिए, मेंटल कैलिबर, बहुत सारे कीवर्ड्स मेंशन हैं, उनको एक बार देख लेना। तो कुछ तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, रिस्पेक्टफुल होना है, बैलेंस्ड होना है, काम होना है, कॉन्फिडेंट होना है, एरोगेंट नहीं होना है, एंड थोड़ी चीज़ें नई होंगी जैसे बैलेंस होना चाहिए। कोई अगर आपसे ओपिनियन भी पूछ रहा है करंट अफेयर्स में, इवन इफ यू आर वेरी एक्सट्रीम अबाउट इट, थोड़ा एलिमेंट ऑफ बैलेंस लाना पड़ता है। अगेन दीज आर थिंग मेंशन इन द सिलेबस। दूसरी चीज़, आप मॉक्स लोगों के देखोगे एंड खुद भी दोगे तो थोड़ा और रिफाइन होगा ओवर टाइम। आई थिंक इंटरव्यू के लिए दिस इज इट। सम मिसलेनियस टॉपिक्स, आई थिंक एक आता है प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, पढ़ाई नहीं हो रही। सो इट डज हैपन आफ्टर लेट्स से 1 साल पढ़ लिया, बहुत थोड़ा बोरिंग तो हो जाता है ये जर्नी। फिर हाउ डू यू मेंटेन आवर्स? तो नंबर 1 थिंग इज लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मैटर्स। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए फिर अगले 3 दिन रेस्ट ले रहे हो, एंड इट डज हैपन। अगर आप ट्राई करोगे कुछ ज़्यादा ही करने का तो जल्दी टायर्डनेस हो जाता है। तो सस्टेनेबल तरीके से करना है, बहुत ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इज डिसिप्लिन। अगर आपने ये एग्ज़ाम देने का डिसाइड कर लिया है तो यू शुड नो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप लोगों को देखोगे कई लोग 5-6 अटेम्प्ट्स भी देते हैं तब भी नहीं होता। सो इट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिसिप्लिन। तीसरी चीज़ हो गई थोड़ा सिस्टम्स। नाउ जो चीज़ मैंने बोली थी आइडेंटिफाई योर कंस्ट्रेंट्स, तो आइडेंटिफाई द इशू। लेट्स से आप व्हाट्सएप से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करता था व्हाट्सएप पे टाइमर लगा देता था, एटलीस्ट सुबह तक तो मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, मैं खोल भी नहीं सकता, बिकॉज आई हैड नोटिस्ड मेरी मैक्स प्रोडक्टिविटी सुबह है, सुबह के लिए मैंने उसको बंद ही कर दिया। इनफैक्ट CSE 22 के वक्त तो मैंने पूरी तरह छोड़ा हुआ था फॉर अराउंड 1.5 years। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बोरिंग। कई बार होता है कि चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, तो नंबर 1 थिंग इज़ यू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो उसका एक मुझे सोल्यूशन, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी लक्ष्मीकांत ऑनेस्टली, तो मैं यूट्यूब पे उसके वीडियोस देख लेता था। बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनने सेम लक्ष्मीकांत का कंटेंट उनने पढ़ाया है। नाउ अगेन द ओनली थिंग इज दिस शुड नॉट बी बल्कि। अगर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में लेट्स से 7 days लग रहे हैं तो दिस शुड नॉट टेक मोर देन दैट। कंसाइज होगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगेन मल्टीपल बुक्स नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ ली फिर DD बासु भी पढ़ रहे हो। लक्ष्मीकांत की ही समरी या यूट्यूब सीरीज़ करो ताकि सेम चीज़ें हों। बाकी हो सकता है आप अपना शेड्यूल से थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हो। अगर सुबह आंसर राइटिंग करते थे, सुबह कुछ और कर लिया, न्यूज़पेपर शाम को कर दिया, डिफरेंट रूटीन से आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो अगेन थोड़ा न्यूनेस आती रहती है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी अगेन डिसिप्लिन पे तो जाना है। मोटिवेशन की बात करूँ तो थोड़ा वो फ्लीटिंग सा होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, बट दिस अटेम्प्ट इट डिड हेल्प मी मोटिवेशन। अब नेचुरली मेरा ये था कि लास्ट ईयर मेरी रैंक 87 आई थी एंड 83 पे IAS क्लोज हुआ था, तो मुझे ये था थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन कि इस बार कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो कहते हैं कि नो स्टोन्स अनटर्न्ड, बिकॉज ये वाली फीलिंग काफ़ी ऐसा होता है कि कुछ स्लाइट एरर के कारण शायद छूट गई, तो हल्का सा भी कुछ नहीं छोड़ना है। मुझे ये मोटिवेशन था। आपका कुछ भी हो सकता है, अब नेचुरली वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। दूसरा आई थिंक एक एस्पेक्ट आता है मेमोरी का। कई बार लोग पूछते हैं कि याद नहीं हो रहा है या कैसे याद करना है। नंबर 1 थिंग इज रिविजन बहुत सारे करने हैं। अगेन 3-4 रिविजन तो मिनिमम ही हो जाता है। दूसरा खासकर फॉर मेंस आपके नोट्स कंसाइज होने चाहिए एंड पॉइंट फॉर्म पिन पॉइंटेड होने चाहिए, तो आपको और अच्छे से आसान होगा। तीसरा देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्टिव रिकॉल, शायद आपने कहीं पढ़ा हो सुना हो। तो जब हम नॉट जस्ट वी आर पैसिवली रिवाइजिंग पैसिवली रीडिंग बट ट्राइंग टू रिकॉल। अब लेट्स से माइंड में मैंने ले लिया टॉपिक गवर्नेंस और मैं खुद से याद कर रहा हूँ मुझे क्या क्या उसके बारे में याद है। इट इज़ सेड दैट ऐसे में फिर वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी रहती है।
कि आप टेस्ट दोगे या आंसर राइटिंग करोगे तो भी ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ ही जाती है. ब्रॉडली आई थिंक मेमोरी का इतना नहीं है. नाउ वन थिंग इज हाउ टू प्लान योर प्रेप. इनिशियली जब आप कर रहे हो तो रिलेटिवली ईजी होता है. वट आई यूज टू डू इज मैं सब्जेक्ट्स एक बार उठाता था तो पूरे दिन 3-4 दिन जितने दिन लगे सेम सब्जेक्ट करता था, सेम टॉपिक. दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि दिन को डिवाइड कर लिया, आधा दिन ऑप्शनल आधा दिन जीएस, तो यू कैन डू एनीथिंग. बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, प्रायोरिटाइज करना है. दिस थिंग अगेन अप्लाइज एवरीवेयर. अभी शायद वो ना रियलाइज हो, बाद में रियलाइज होगा. प्रायोरिटाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगेन थर्ड अटेम्प्ट की भी बात करूँ मैं, इवन इन दिस अटेम्प्ट मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री को निगलेक्ट करना पड़ा बिकॉज टाइम नहीं था, एंड ये चीज़ बाद में ही रियलाइज होगी. बट अगेन अभी बिकॉज है तो छोड़ना कुछ नहीं है. कवर द लो हैंगिंग फ्रूट्स, कवर द लेट्स से ईजी लो एफर्ट थिंग्स. अब अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात करूं तो मैंने एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़ लिया बिकॉज मुझे पता है PYQs में उस पर थीम्स आ रही हैं. कोई भी चीज़ पूरी तरह नहीं छोड़नी है. एंड एज फार एज पॉसिबल आपको नोट्स जितना अभी बना पाओ उतना बेटर. बाद में नोट्स बनाने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है. नियर एग्जाम प्लानिंग जो ज़्यादा क्रूशल होती है उसका मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये बहुत डिफिकल्ट होती है. एंड द बेसिक आइडिया आई हैड इज़ टू कीप अ डायनेमिक अप्रोच. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत प्लान किया था कि लेट्स से इस डेट तक मुझे इतने टेस्ट देने हैं, इतने रिविजन्स करने हैं, बट वो नहीं हो पाया. सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने डायनेमिक रखा कि कोई टारगेट्स नहीं रखूँगा, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करूँगा. अगर मुझे लग रहा है और टेस्ट देने की ज़रूरत है तो और टेस्ट दूंगा, अदरवाइज आई विल डू मोर रिविजन एंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आई विल डू दैट. बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस खासकर एग्जैक्ट शेड्यूल तो आपको खुद ही देखना होगा एंड ऑल्सो विल डिपेंड ऑन योर ऑप्शनल. बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस everyone thinks they are not following the right strategy. Everyone is unable to plan properly. तो अगेन मेरा सोल्यूशन यही था, डायनेमिक रखना है, सब कुछ बैलेंस करना है, नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट. ऐसे नहीं कि GS कॉम्प्रोमाइज हो गया, या इवन विद इन GS ऐसे नहीं कि 1 and 2 स्ट्रॉन्ग कर लिया, 3 and 4 वीक कर लिया. सारे मेंटेन करने हैं एंड विथ प्रायोरिटाइजेशन. जो इंपॉर्टेंट है वो तो छोड़ना ही नहीं है, उसको पहले उठाओ, उसको अच्छे से करो, accordingly decide. Okay, I think broad topics covered. Just to reiterate some final points from my side. Number 1, gain clarity on the exam. क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, कैसे लिखना है. Topper copies and PYQs are the best for this. दूसरी चीज़ prioritization. अभी फिर भी ठीक है, I think if you're just starting, but soon you will have to start prioritizing. कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, विद इन द सब्जेक्ट कौन से चैप्टर्स करने हैं, विद इन द चैप्टर्स किस टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब प्रायोरिटाइज करना. देन यूजेबल कंटेंट ऑलरेडी बहुत सारा है, लेट्स से टॉपर नोट्स, टॉपर कॉपीज, कोचिंग कंपाइलेशंस. तो डोंट री इन्वेंट द व्हील. वैल्यू एडिशन मटेरियल अगर करना है तो खुद से मत कलेक्ट करने लग जाना न्यूज़पेपर से, ऑलरेडी अवेलेबल है, बस एक्सट्रैक्ट कर लेना. एंड अगेन टॉपर कॉपीज इज समथिंग आई स्ट्रांगली रिकमेंड, खासकर मेंस के लिए. सो दैट इज आई थिंक ऑल ऑफ इट फ्रॉम माई साइड. सो नाउ यू कैन आस्क डाउट्स एंड एक सेकेंड, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी इफ देर इज एनी ब्रॉड एरिया दैट आई हैव मिस्ड आउट, या पूरा एरिया ही कवर करना हो. Sir, actually, I want to ask, sir, what is the procedure to do the revision? Sir, what is the steps behind doing the revision? So, देखो, if you have made your notes, then revision first round involves reading those notes, rereading those notes. Yes. At least 2 or 3 times you have to reread your notes. If you have not made your notes, या तो if you are planning to revise from that book only, so that is, in my opinion, that is slightly a lengthier process, but some people do that. So again, you have to reread at least 2 or 3 times. उसके बाद you can go for tests, mock tests, or any kind of such assessment. Then you will realize what is missing. So again, what I talked about, identifying your constraints. Let's say you have studied GS2 completely, you have revised it, you gave a test. You will realize what is missing. Either you did not have enough content, or you had your content but you were not able to recall it, or maybe you didn't have enough value addition. Accordingly, you add to your notes. Okay, notes will always be an iterative process. Your first round of notes will not be perfect. As you learn, as you give mocks, you will realize what more to do, and then you can again revise. Sir, sorry to say, but sir, my next question is that, sir, what should be our diet plan? Sir, actually, sir, I am asking from all the students who are there. Sir, that usually we are after studying in afternoon, after eating the lunch, sir, all we are feeling sleepy, sir. Sir, what should we do, sir? What should be our diet plan? स्लीपीनेस के लिए 2-3 चीज़ें आई एक्चुअली डिड प्रिपेयर, बिकॉज एग्जाम के दिन दिस विल मैटर. जो मेंस का एग्जाम होता है, फर्स्ट यू हैव 9 to 12, देन 2 to 5, उसमें थोड़ी
स्लीपीनेस आती है, नंबर वन थिंग यू कैन ब्रश योर टीथ जस्ट बिफोर दैट. आई थिंक मैक्स फ्रेश टाइप Yes, का sir. टूथपेस्ट यूज़ कर लेना. दूसरा देन यू कैन सिंपली लाइक स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस, थोड़ा हेल्प कर देता है. Yes. थर्ड इज ईटिंग लाइट. अब अगेन मतलब स्टार्व नहीं करना है, बट समटाइम्स इट हेल्प्स, नॉट ओवर ईटिंग, तो ड्राउजीनेस नहीं आती है. फोर्थली वॉट यू कैन डू इज कि पोस्ट लंच स्लॉट में यू कैन कीप समथिंग इंटरेस्टिंग और समथिंग दैट एंगेजेस यू, ताकि नींद ना आए. अगेन फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आई वुड डू मैथ्स आफ्टर लंच, तो थोड़ी कम नींद आती थी, तो यू कैन डिसाइड फॉर सर. Yes, sir. Sir, last question, sir. Sir, my last question is that, sir, what should be our study environment? Sir, we have to study in home, or sir, it is better to study in library? Sir, means what should be our environment while studying? So it definitely depends on the person. I studied from home only, but you can experiment. You can go to the library for 1 month. You can see how it affected you, and accordingly you can make a decision. Some of my friends are studied from home. Some were staying together in Old Rajendra Nagar, and some went to library. Thank you, sir, so much, sir. Good afternoon, sir. Sir, I have mainly 3 questions. The first is that I have recently started my preparation and I'm just reading the NCRTs and sort of that. And plus, I'm in college, so like my day starts at 9 and even I teach coachings. So my day ends at 8. So how would I manage time? Because I have to study the material for college also, and that too I have to maintain a decent GPA or SGPA. And plus I have to prepare for this also. So how should I plan my day for that? So which year are you in? So I am in first year, but I have. So see, I joined coaching in my 3rd year, so I had a similar experience. What I used to do is whatever is taught in class, I revise that. If I could do just that, I would consider it enough. And immediately after coming home from class, I would do that. Mostly that semester for me was also heavy, so I could not do too much. But one thing I recommend to college students is, if your college has that system, you can take some of the final year courses and do it in your 2nd year. So for example, you may have open electives or some other open courses. So I took them to my 2nd and 3rd year. This helped me. My 4th year, I did not have any courses. लास्ट सेमेस्टर में मुझे 0 क्रेडिट्स करने थे, बट आई थॉट कि मुझे निकाल ना दें, तो थोड़े कर लिए मैंने जबरदस्ती. सो इफ़ यू हैव दैट पीरियड एम्प्टी, यू विल बी एबल टू फोकस अ लॉट ऑन दिस एग्जाम, एंड नेचुरली नियरर टू द एग्जाम द टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट. So my second question was that how should we read the NCRTs? Like we should read a particular subject for like maintaining a period of time. Like we should study whole history 6 to 12 once, or we should study class by class. Like we should study 6th, 7th, and 8th. How should we make the notes and like that? So again, since this is the initial phase, you can go either way. I personally kept it more iterative. So for example, history, I may read 2 books, then I will shift to some other subject, then again I will come back. But also I did not read all the NCRTs. Mostly the 11th, 12th NCRTs are more important. But the advantage of this iterative approach, number 1, you gain clarity of the exam as you proceed. Number 2 is you will be able to remember better. I think there is a concept called spaced revision. You may have heard about it. So rather than studying everything about history at once, if you study a little bit right now, a little bit after 1 month, that will serve as 1 round of revision, and that will help you remember better. But again, both are equally fine. You can study all at once, make notes, and then you can revise the notes after a few months. So my last question was like how to develop interest in newspaper or read the newspapers, because initially it's very boring and we are not able to even decide that what news should we read, because many YouTube sources, there are many sources by which we can get distracted. Some says that initially we should read the whole newspaper, some says we should select the news and then read, like we should not political newses and that. So how should I know that I have to read this news and not that? So again, initially it will be a little bit difficult, but see previous year questions regularly, then you will develop that mindset about whether this news is relevant at all. Again, for political news, you will see that in prelims and mains, those 2 questions are not asked at all. For interview, it may be asked. So at the starting stage, only we have to see the PYQs. Like I have just started the preparation. I have not read so much. So then also I have to see the PYQs. You can see, you can get a rough idea. Even if you're not getting an idea, there is no harm in seeing the previous year questions. And so is it important to join the coachings, or like how to avoid multiple sources, or what should our strategy, if we have to prepare at home, then how we can do that? I don't think coaching is necessary now, because you can find the relevant material, content, videos, everything for free on YouTube or every coaching website.
And sorry, what was your other question? Sir, there are many sources. Like if we go on YouTube, we find many videos, and sometimes I experience this thing that I waste a lot of time in seeing many videos. Like I don't have a specific source that I have to read it from this source only. So how should we find that source that yes, this is the right content for us, and we should not get distracted by many other videos that are available on the social media sites? So broadly through experimentation, you try 5-6 different videos. If you find them to be good, conciseness would be my personal criteria and comprehensiveness also, then you can continue with that. For example, like I mentioned about the Lakshmikant. So I searched on YouTube Lakshmikant prelims videos. I found multiple. Then I saw how long they are, how well they are teaching, and accordingly I decided on one. Okay, thank you, sir. Okay, who's next? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? सर मेरा क्वेश्चन ये था, क्या कोई भी जैसे एक सब्जेक्ट अपन ने एंड किया, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया 1 मंथ में, तो 1-2 वीक बाद उसका फिर रिवीजन किया, तो तभी के तभी तो अपन आंसर राइटिंग उसका नहीं कर सकते, तो उसका आंसर राइटिंग के लिए हम एवेल्यूएशन ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म आप अगर बताएं। सो एक तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में थोड़ा ये इशू ज़्यादा आएगा। GS2 के टॉपिक्स थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, तो उनको आप एक बार भी पढ़ोगे तो शायद थोड़ा बहुत आंसर लिख पाओगे। एंड अगेन इनिशियल आंसर्स अच्छे ना हो कोई इशू नहीं है, बस वो आदत बनाने वाली बात है। बेसिक आइडिया फिर आपको आता रहेगा। आप आंसर राइटिंग थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ पढ़ रहे होगे आपके माइंड में होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। तो अगेन इनिशियली अच्छे ना हो कोई इशू नहीं है। हिस्ट्री वगैरह में आई नो थोड़ा ये इशू ज़्यादा आता है, बट आप ट्राई कर सकते हो। एंड सर मेरा ये डाउट था कि ऑनलाइन अगर कोई प्लेटफॉर्म है आंसर एवेल्यूएशन के लिए, तो आप वो ऑनलाइन हैं तो काफ़ी सारे इनसाइट्स का सिक्योर, जैसे हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो हाँ। और मतलब आंसर एवेल्यूएशन के इशू रहता है इसलिए। हाँ, सो इनिशियली अगेन फ्री इनिशिएटिव्स हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हो आप कौन से अभी भी चल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। बाद में आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। एक टेस्ट सीरीज़ भी आप करोगे तो उसके इवैल्यूएशन से आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। 1-2 बार आप टेस्ट इवैल्यूएट करवा लो तो मेजर जो चेंजेस आने हैं वो आ जाएंगे। तीसरी चीज़ अगेन टॉपर कॉपीज़ आप देख लो, अपने आंसर्स को उनसे कंपेयर कर लो। इवन आप ये कर सकते हो दैट टॉपर कॉपी खोली, उधर जो क्वेश्चन है वो आपने लिखा, फिर आपने कंपेयर किया, हाँ, तो उससे फिर आप अकॉर्डिंगली इम्प्रूव कर सकते हो। और सर कोई आप चैनल बना देना यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे, तो थोड़ा रिसोर्सेज से या गाइडेंस उससे मिले। कहीं ना कहीं डाल दूंगा। ठीक है, who's next? Okay. May I please request आप keep yourself to 1 question and 2 at max so that every one of us gets a chance to ask, okay? Good afternoon, sir. So I wanted to ask, what's the maximum number of questions that we should attempt in prelims specifically? So this is something you have to experiment in mock tests. फर्स्ट अटेम्प्ट तक आई यूज टू गिव अराउंड 90 to 95 सिंपली बिकॉज मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया था। इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई जस्ट थॉट कि थोड़ा चेंज करते हैं, एंड वट आई फाउंड व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग ऑल 100 क्वेश्चंस आई वाज गेटिंग बेटर मार्क्स। तो आई वेंट टू प्रीलिम्स विद दिस स्ट्रैटेजी दैट आई विल डेफिनेटली अटेम्प्ट ऑल 100 इवन इफ आई हैव टू गिव अ ब्लाइंड गेस। But again, with the new pattern, definitely you need to consider more. So in mock tests, you experiment. One day you attempted all 100, one day you attempted 90. But try this whatever strategy you're considering, try it on multiple mock tests, 3 to 4 mock tests, then you make your decision. And sir, one last question, that how to develop interest in some static subjects like geography or history, and how to maintain the continuity of it. So it does get boring, and even if it does get boring, you will have to study. So building interest, again, you can think of alternatives. Like geography on YouTube, there is a channel, Arjun Sen Gupta. So sir has taught in a very good manner. So such alternatives you can consider. Don't change your source too much. Even if you're going for YouTube videos, go for the same book that you have already studied. And otherwise, again, it's a matter of discipline that you have to study. Sir, mainly medieval and ancient part, many questions are being asked from other sources which are not covered through NCERTs. So what should be the sources so we can address, especially in prelims? So see, ancient and medieval, usually not a lot of questions are asked, and preparing them will require a lot of time. So these are what I consider low priority, along with art and culture also. One thing to do is you look at previous year questions, you'll see themes. For example, ancient medieval, you'll see terminology is being asked a lot.
And many coachings have prepared consolidated notes on terminologies, so you can prepare that. Again, timelines, like which dynasty was at which time, you can prepare that. Some topics like, let's say, Jainism and Buddhism from art and culture, those are important, so you can selectively read them from the bulky books. But don't read bulky books for ancient medieval. Mains में भी hardly एक दो question आते हैं, prelims में भी कम आते हैं, difficult आते हैं. So this one thing I'm giving a general idea. You will find many questions which are very difficult, but these are questions that you're not supposed to go after. You have to focus on what is predictable, what is easy, and what requires low effort. Because ultimately सब कुछ नहीं करा जा सकता है, सब कुछ करने की कोशिश भी नहीं करनी है. Sir, one more doubt. Sir, how to do stress management? As the exam approach, sir, stress level steadily increases. So how to do the management there? Definitely stress काफ़ी होता है, especially prelims में तो I remember it was extremely stressful. Even in my after my second attempt, already being in service, I was extremely stressed about prelim. Number one thing is this only, realize that everyone is stressed. Even people who have cleared the exam, they are also stressed. So you're not the only one. Second thing is just about trying to stay calm and composed during the exam. This will give you a little edge because in the paper, that stress will manifest into panic. Many people will start panicking because of that built up stress and seeing shocks. So you mentally prepare yourself for the exam. उसके पहले stress होगा, there is no denying. Exam के वक्त stress ना हो, ये ज़्यादा important है. Third thing is you can consider activities like meditation, journaling, breath work. A lot of my friends used to do that. Even what I used to do, I used to watch comedy videos on YouTube, TV series या कुछ के clippings. So as long as it is not taking too much time, it will help. And any other hobbies also if you have, but again, too much time ना जाए वहाँ. Many congratulations, sir. Yes, sir. Oh. Sir, as sir, the pattern of this examination is changing right now. And sir, last year the questions are like only one is correct, only two is correct, only three is correct. And even sir, if we take a polity section of Lakshmi, if we take Lakshmikant, some of the questions like what do you mean by due process of law, which doesn't have any answer in the Lakshmikant because it is more theoretical. So what we can do about it? One thing is for polity, do read the NCRTs. These kind of questions are well covered, I think mostly in 11th, 12th, but also 9th, 10th. Second is tough questions are coming and pattern though is extremely difficult. So practicing in the mock tests and accordingly formulating your strategy. Matlab, there is no solution for this honestly. It is an extremely difficult and risk prone pattern which will also involve a lot of luck. Conceptual topics के लिए again NCRT and you can also revisit previous year questions. Because even I think in 2021, a few questions which were asked were repeated from 10 or 15 years back. Not directly, but same topic. And also Atish Mathur sir का YouTube पे channel है that you can see for such conceptual topics. Economy का one thing I felt is doing a lot of MCQs will help. You're asking for prelims, na? Yes, sir, prelims. So apart from studying from whichever book, doing a lot of MCQs. Free MCQs you find on almost every coaching website, mock tests also. You can also pick up a question bank of economics, so that will help. Sir, any source for economics, sir? Material? Yeah, yes, questions? sir, material. I did from Sriram sir's book, and classes also I had gone there only. Okay. But for questions, some question banks I have seen, I think Vivek Singh sir has Eco 550, that is helpful. But again, don't spend too much time on any one subject or one topic. And YouTube also, you can see some good series if there are there, because जहाँ concepts हैं, वहाँ explanation does help. Thank you, sir. Thank you so much. Good afternoon, sir. So my question to you is, what is the right time to start optional? You're preparing for next year's exam? No, sir, for 2026. So if you have finalized your optional, you can start right away. You don't have to unnecessarily delay it. You can do parallelly with your GS. And so if I am picking one topic for optional, then अगर जो मैं उसका एक वीडियो देख रही हूँ and I am doing it from a book also, तो मेरे को notes किससे बनाने चाहिए, वीडियो से कि बुक से? So simultaneously करने की जगह पहले किसी एक सोर्स से कर लिया, let's say बुक पढ़ ली सारे टॉपिक्स, फिर एक एक करके जब टॉपिक्स बना रहे हो किसी एक सोर्स से बनाए, फिर जब वीडियो देखा तो उन एग्जिस्टिंग नोट्स में ऐड किया. दो डिफरेंट नोट्स नहीं, एंड साइमल्टेनियसली आई वुड नॉट रिकमेंड अनलेस यू फील दैट एक सोर्स इनफ नहीं है. वन एट ए टाइम बेसिकली. एंड सर न्यूज़पेपर के नोट्स डे वन से बनाने हैं कि बाद में? मैंने तो नहीं बनाए थे, बट अगेन प्रीलिम्स में आजकल ये तो हो रहा है दैट एक दो साल पहले के टॉपिक से पूछा जा रहा है, बट इट मे नॉट बी वर्थ योर टाइम
इनिशियली, बिकॉज इनिशियली वो उतना अच्छा आइडिया ही नहीं होता है कितने एक्सटेंड तक नोट्स बनाने हैं. बट अगेन यू कैन ट्राई इफ़ यू कैन मेक दिस नोट्स विद इन 45 मिनट्स. बहुत कंसाइज पिन पॉइंटेड नोट्स. एनवायरमेंट साइंस एंड टेक पे ज़्यादा फोकस करते हुए फैक्चुअल पार्ट्स फॉर प्रीलिम्स आई थिंक यू आर फोकसिंग मोर ऑन, राइट? एडिटोरियल्स देख लेना फॉर मेंस. तो अगेन इफ़ यू फील इट्स टेकिंग टू मच टाइम देन यू कैन स्टॉप. So it takes 3 to 4 hours for me. हाँ, 3 to 4 आवर्स तो नहीं लगाने हैं डेफिनेटली. या तो यू कैन अगेन आफ्टर लुकिंग एट सम PYQs, वो भी थीम वाइज, देन इफ इट हेल्प्स यू, इफ यू फील दैट नाउ यू आर एबल टू मेक नोट्स इन लेस देन 1 hour, देन यू कैन गो इट. अदरवाइज इतने तो मत लगाना. Thank you, sir. ऑल्सो नोट्स के भी यू कैन लुक एट ऑल्टरनेटिव्स. लाइक अगेन मैं तो लैपटॉप पे पढ़ के स्क्रीनशॉट ले लेता था. इफ़ यू राइट एवरीथिंग नेचुरली इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम. कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. सर मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? 2025 में पेपर दूंगा प्रीलिम्स का. सो मैथ्स की यार अभी सबके लिए रेलिवेंट नहीं होगा, तो या तो बाहर बात कर लेंगे हम, बट ब्रॉडली सिलेबस के सारे टॉपिक्स एक एक करके करने ही हैं. फिर आप उनके नोट्स बना लेना. मैथ्स के जो अगेन मैंने बोला था नोट्स के भी नोट्स, माइक्रो नोट्स टाइप, मैं भी अपने नोट्स शेयर करूँगा, उनको भी देख लेना. फिर प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है. PYQs मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आफ्टर हाँ सर कॉलेज के साथ ही अभी 3rd ईयर ही चल रहा है सर. हाँ, सो या तो आप चाहो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. अदरवाइज मैंने तो मैथ्स पढ़ा खुद से था, बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी. या तो कोचिंग मटेरियल कोई उठा लेना, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी नीतीश के सर के ब्लॉग, कनिष कटारिया सर के ब्लॉग, उनको उठा के रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ लेना, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की, नोट्स बनाए, फिर प्रैक्टिस. बाकी अगेन बाहर और बात करते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. Okay, who's next? सर प्रीलिम्स का लेवल देखते हुए क्या प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए? देखो स्टैटिक में इशू ये आएगा दैट इफ लेट्स से लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो नोट बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा एंड वो इतने बल्कि बनेंगे दैट इट विल बी सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट. सर डिस्क्रिप्शन के थ्रू बहुत से ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे टॉपिक्स रहते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है कि हम यदि अगेन उन क्वेश्चन पे जाएंगे तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है. तो जब ऐसे टॉपिक्स के हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो भी बल्कि होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जैसे रहती है, टेस्ट सीरीज में काफ़ी टॉपिक कवर रहते हैं, तो भी बल्कि होता है. तो हमें किस लेवल पे जाके रुक जाना चाहिए? जैसे मैंने अभी शॉर्ट नोट बनाना शुरू किया तो 200 से 300 पेज के शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुके हैं. तो अब मुझे लग रहा है कि मैं इसे रिवाइज़ कर लूँ या फिर सब्जेक्ट वाइज लेवल 2 में जाऊँ, या इससे एडवांस पोर्शन को कवर करके कुछ और वैल्यू एडिशन जुड़ता है उसमें जोड़ दूँ. दूसरा प्रश्न सर सेम रहेगा कि ऑप्शनल सर एक ही बार पढ़ा है तो ऑप्शनल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. ऑप्शनल समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शनल याद तो कुछ रहता नहीं है. अब जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर क्या सर ऑप्शनल बिना नोट्स के तैयार कर पाना आसान? आप ये वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं 24? जी ओके जी सर, 2 ही क्वेश्चन है. ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री है सर. ओके, हिस्ट्री आई थिंक थोड़ा बड़ा ऑप्शनल है शायद. सर बोरिंग भी है. सो पहली चीज़ तो अगेन शॉर्ट नोट्स की बात करें तो हाँ, शॉर्ट नोट्स अगेन स्टैटिक के लक्ष्मीकांत वगैरह के नहीं बनाने हैं. जो आपने कहा कि जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है उनको आप अलग से लिख सकते हो. ये अगेन मैं लैपटॉप पे करता था, स्क्रीनशॉट ले लेता था बस. ये इशू आता है कि बल्कि नोट्स हो गए तो उनको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है. एंड अगेन आप जैसे जैसे टाइम पास एग्जाम पास आएगा आप और रियलाइज़ करोगे ये भी रह गया, ये भी करना है. तो बात के लिए तो मत छोड़ना, अगर जो नोट्स बना लिए हैं उनको रिवाइज कर लेना. सेकेंडली प्रायोरिटाइज करना. अगेन एंशिएंट मेडिवल आर्ट कल्चर टाइप के नोट्स इफ़ टाइम मिले एंड में तो ही. पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट वगैरह इस पे ज़्यादा फोकस. करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हो, द हिंदू के नोट्स बना लेना. एंड अगर क्लासेस कर रहे हो या यूट्यूब ले रहे हो तो वहाँ के भी पिन पॉइंटेड कंसाइज नोट्स. बहुत ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना अगर नोट बनाने में टाइम लग रहा है, बिकॉज वो थोड़ा मतलब सब ऑप्टिमल ही है. एंड ऑप्शनल की बात करें तो अगेन प्रीलिम्स के जस्ट बाद फिर आपको होपफुली आप क्लियर करो तो इमीडिएटली बात शुरू कर देना. अगर आपके नोट्स नहीं है तो किसी टॉपर के नोट्स उठा सकते हो, बिकॉज नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है. तो नोट्स जो लोग नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं ट्राई करना इसी साल में कंप्लीट हो जाएं. अगर आप लोग खुद के नोट्स यूज़ करना चाह रहे हो, टॉपर नोट्स भी देख लेना. टॉपर नोट्स से अपने नोट्स में नोट्स ऐड कर लेना. मुझे ये पर्सनली बेटर लगता है खुद के नोट्स करना, बट आप दूसरों के भी कम्प्लीटली भी यूज़ कर सकते हो. बट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने का ऑप्शन नहीं रहेगा इस बार. तो खासकर सिर्फ आई थिंक 90 डेज़ हैं. टॉपर नोट्स लेना एंड अगेन प्रायोरिटाइज करना. हिस्ट्री ऑप्शनल किसी भी पेपर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ डिस्प्रपोर्शनेटली हाई अमाउंट ऑफ टाइम वाले टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस भी उतने नहीं आते. इवन मैथ्स ऑप्शनल की बात करें तो फ्लूइड्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 10 साल से हार्डली एक बार पूछा गया है, तो वैसे प्रायोरिटाइज करना है.
हिस्ट्री ऑप्शनल के किसी टॉपर से एक टॉपर टॉक देख लेना तो आइडिया लगेगा और अच्छा। हेलो सर, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं जो हम कोट करते हैं आंसर्स में, सो फॉर एग्जांपल एक ऐसे पूछा गया था, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, और उससे रिलेटेड रिपोर्ट थी ऑक्सफैम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रही थी मेड की, लेकिन इंडिया की, लेकिन उसको डिटेरियोरेट भी नहीं कर रही थी। तो उस टाइप के डेटा हम लिख सकते हैं क्या आंसर्स में? हाँ, मेंस में तो ज़्यादा इशू नहीं है, इंटरव्यू में थोड़ा और केयरफुली होना होता है, बट अगर ऑल्टरनेटिव मिल जाए तो और अच्छी बात है। एंड सर, जैसे ग्लोबल MPI आता है और इंडिया भी अपना MPI इंडेक्स प्रोड्यूस करता है, तो उनमें से किस इंडेक्स को प्रेफर करना चाहिए आंसर लिखने में? जितना याद हो उतना तो लिख ही देना, मतलब दोनों को साथ में भी लिख सकते हो, बोथ आर पोर्ट्रेइंग द सेम पिक्चर, बोथ आर टेलिंग अस दिस, अदरवाइज कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, एज लॉन्ग एज कोई एक वैल्यू एडिशन उन्हें दिख रहा है, दैट विल गो इन योर फेवर। बाकी इतनी बारीकियों आई डोंट थिंक ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एंड सर, वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल को लेके था, वो हाउ मेनी ऑफ यू हैव मैथ्स ऑप्शनल? बाहर मिल लेंगे। हाँ, अच्छा, ओके, पहले आई थिंक जो GS वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं, जनरल पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन वी कैन आई थिंक फोकस। Sir, with respect to here, sir, prelims test, I had questions, 3 sub questions, like till when shall we stop attempting them, and how frequently in the last month, especially before the exams, and how frequently we should attempt, and then post that after we have stopped attempting the mock test, especially. So post that, what should be our strategy? We go for PYQs every day or what? So I think first I would say well done. सर ने कहा था एक ही क्वेश्चन पूछना है, आपने 3 सब क्वेश्चंस बना दिए। So हाँ, I would recommend around last 2 weeks don't give any mock test. Major reason क्या है, कभी कभार sometimes they are very difficult, and if you get low marks in that can really demotivate you. This did happen to me in CSE 22 last year. So 2 weeks you can keep that time for not giving any mock tests, but some people do give in the last 5-6 days also. Secondly, sorry, what was your question? How frequently we should attempt them? Again, this is your first attempt? Serious one, yes, and वैसे second. अच्छा, हाँ, so don't give too many tests. Again, I, for my second and third attempt, did not keep a fixed target, like giving every week or every 2 or 3 days. It was a dynamic approach. Honestly, ये भी था कि जिस दिन मन किया उस दिन दे दिया, but broadly, don't give too little and don't give too many tests, because you will also have to revise a lot, standard books, current affairs. So don't go for too many tests, otherwise उनसे जो learnings होंगी उनको revise करने का time नहीं होगा. Other than that, again, there is no fixed rule. If you think you need more practice of solving questions, give more tests. If you think you need to revise the basics, give less tests, revise more. If you think you need more content, then do more current affairs and PYQs and all. And for the last 2 weeks, what we're supposed to do, you can do more of PYQs. I think Vision की website पे PYQs काफ़ी अच्छे से हैं, because they have given a full explanation also. Backwards करना है again, 23 first, 22 second, 23, 21, and you can do last 10-12 years easily. And some of the important topics, and if you have prepared any lists or final material, like terminologies, national parks, wildlife sanctuaries, rivers, any such last minute stuff, you can prepare right now, and then you can revise it in the last minute, last few days. हेलो सर, ये आपने प्रीलिम्स के लिए इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इसके बारे में कुछ बताइए कि वो कैसे तैयार करना है, शॉर्ट्स नोट्स वगैरह, और पॉलिटी में जो मेजर आर्टिकल्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, तो उनको दिक्कत हो जाती है थोड़ी तैयार करने के लिए। फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने तो NCERT ही की थी, बाकी अगेन यूट्यूब पे कुछ सीरीज़ देख ली थी, बट लार्जली NCERTs। एंड मॉक टेस्ट में अगर लगता था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ है तो उसको कर लेता था, बट अगेन इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट फ्यू ईयर्स, फिजिकल ज्योग्राफी से एज सच ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। आई डोंट थिंक 2-3 भी आए होंगे पर ईयर, सो इट्स नॉट अ मेजर कंसर्न, बट अगेन NCERTs एंड PYQs इज़ द स्टैंडर्ड। पॉलिटी की बात करें, आर्टिकल्स ओवर टाइम याद हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो, अगर आपको यही नहीं याद कौन सा आर्टिकल कौन सी चीज़ के बारे में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट फ्यू पेजेस में एक लिस्ट है, उसको देख लेना, 4-5 पेज की है। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा गो थ्रू करा जा सकता है फंडामेंटल राइट्स तक, वहाँ के थोड़ी बारीकियाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 19 में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, 21 में और क्या क्या आता है,
वो अगेन बिना ज़्यादा टाइम लगाए देख सकते हो। एंड शॉर्ट नोट्स तो आई वुड नॉट से, ना ज्योग्राफी के ना पॉलिटी के, अगर किसी टॉपर ने बनाए हो तो वो देख सकते हो। आई थिंक कनिष्क कटारिया सर ने मैपिंग या ज्योग्राफी पे कुछ बनाए हुए हैं, एंड बहुत सारे टॉपर्स बनाते हैं। खुद उतना टाइम लगाना मे नॉट बी वर्थ इट। सर ये मैप के थ्रू जो क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए कोई सही अप्रोच? मैपिंग, हाँ। एक तो करंट अफेयर्स में जो प्लेसेस रह रही हैं वो पता होना चाहिए, कहते हैं उन्हें प्लेसेस इन न्यूज़। इस पे यूट्यूब पे अगेन बहुत सारी सीरीज़ मिल जाएंगी। तीसरा, मॉक टेस्ट में कई बार आपको इस पे क्वेश्चंस आएंगे भर भर के। बाकी जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, लेट्स से इंडिया की रिवर्स हो गई, इंडिया के हिल्स, इंडिया के माउंटेन्स, नेशनल पार्क्स वगैरह, एटलस से भी ले सकते हो या फिर इंडिविजुअली गूगल कर सकते हो। मैं तो गूगल करके डाउनलोड कर लिया था, 3-4 बार देखता था, मतलब अच्छे से जितना टाइम लगे समझने में। बाकी अगेन मॉक टेस्ट से भी काफ़ी ये कवर होंगे और समझ आएगा बाकी चीज़ें कैसे करनी है। हेलो, नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करने का एक तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम अपनी कमियों को उसमें अच्छे से पहचानें? सो एक तो मैं कहूँगा मॉक टेस्ट को सिर्फ एनालिसिस की तरह मत देखना, प्रैक्टिस की तरह भी देखना। बट असेसमेंट जहाँ एनालिसिस की बात हुई, 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये कि कौन से टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। लेट्स से पॉलिटी से गलत हो रहे हैं तो ये काफ़ी सीरियस बात है और आपको रिवाइज करना है। एंशिएंट मेडिवल कम हो रहे हैं तो उतना बड़ा इशू नहीं है, फिर भी अगर स्पेसिफिक इश्यूज हो रहे हैं तो कोई मटेरियल उठा के कर लिया। दूसरा, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। पेपर के वक्त ऐसा तो नहीं था कि आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, कुछ क्वेश्चन आप टच ही नहीं कर पाए, वो सब असेस करना है। तीसरा, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, कि आपने लेट्स से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए। जो मैंने मेथड बताया था श्योर टेंटेटिव डाउट का, तो मैंने असेस किया था मेरे श्योर वाले क्वेश्चन में 90 to 95% एक्यूरेसी आ रही थी, तो मतलब वो स्ट्रैटेजी सही थी। तो उस टाइप का वो असेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो कि जो नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें लॉजिकल एलिमिनेशन या इनडायरेक्ट एप्लीकेशन, वो आप कितना कर पा रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको और मॉक टेस्ट देने चाहिए। आई थिंक दिस विल आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो। इफ इट्स नॉट जस्ट द डायरेक्ट क्वेश्चन यू आर मिसिंग, इफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो रैंडम क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो लॉजिक या कुछ एप्लीकेशन से, देन ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो थोड़े और मॉक टेस्ट दे सकते हो फिर। ठीक है सर। वैसे ज़्यादा सर मिसलिनियस क्वेश्चन जो होते हैं सर वही ज़्यादा गलत होते हैं, जो मतलब बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, एकदम से आ गया है। आजकल इशू ही ये है दैट 70% पेपर इसी टाइप का आ रहा है, तो उसी को हैंडल करना है लॉजिक से, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड रिस्क लेके थोड़ा। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा मिसलेनियस क्वेश्चंस को नॉलेज वाइज मत चेज करना। मॉक टेस्ट के सोल्यूशंस में भर भर के नॉलेज होती है, बट इफ़ इट्स अ रैंडम क्वेश्चन तो अगेन बहुत सेलेक्टिवली करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज टेस्ट में आया है तो पूरा अच्छे से याद कर रहे हैं, नोट्स भी सेलेक्टिवली ही बनाना उन पोर्शंस के। Any more questions? Sir, first of all, congratulations for getting this good rank. Sir, one question from my side is, sir, should we make notes from NCERTs? And second, when to start answer writing? So आप इस साल दे रहे हो, अगले साल? No sir, 2026. 26, okay. तो NCERTs के लिए अगेन मैंने प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाए थे। इनिशियली तो यू जस्ट रीड इट टू गेट अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। Much later, near prelims, I made notes from polity NCERT and economy NCERT, because number one, conceptual questions are being asked nowadays. दूसरी चीज़, इकोनॉमी NCERT से कई बार वर्ड मीनिंग्स पूछ लेते हैं। देयर इज ऑल्सो ग्लोसरी इन इकोनॉमिक्स NCERT, माइक्रो की भी देख लेना, मैक्रो की भी। समटाइम्स एक आई थिंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वहाँ से आया था। बट अगेन नोट्स अगर बना भी रहे हो तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव विल बी मोर हेल्पफुल फॉर NCERT। मेंस के लिए थोड़ी बेसिक हो जाएगी वो। प्रीलिम्स के लिए कंसाइज नोट्स बना सकते हो आप NCERT, नॉट राइट नाउ। अभी तो बेसिक आपको करना है, बैकग्राउंड बाद में बना सकते हो। Sir, should we read them multiple times or one time? अगर नोट बना लिए हैं कॉम्प्रिहेंस इनिशियली तो जस्ट रीड इट, डोंट मेक नोट्स इन द फर्स्ट राउंड। इफ इन लेट्स से द सेकंड राउंड यू हैव मेड नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, तो फिर डोंट रीड NCERT अगेन, जस्ट रीड द नोट्स। एंड बाकी टाइम पे भी डिपेंड करेगा। My second question was, when to start answer writing? Again, my opinion is if you have covered one topic, you can pick up the previous year questions from that topic. But again, वो depend करेगा, जैसा डिस्कस हुआ, history and all, you may need 2 revisions before you can write a decent answer. Conceptual topics, governance, polity, economy, those you can start after one reading. उतने अच्छे आंसर्स ना भी हों, that is not an issue. Over time you will improve. Don't wait too much. Also, मैं personally answer writing को overdo नहीं करता था. There is a common, I think, recommendation to do it like multiple hours per day, but मेरे हिसाब से रिविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर मैं रिवीजन करता हूँ सर और उसके बाद टेस्ट देता हूँ और खुद को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ सर, और अगर कुछ कमी पाता हूँ सर तो मैं ना सर मतलब इगोइस्टिक रिवीजन करने का टाइप करता हूँ सर, मतलब वही पर स्टक हो जाता हूँ और वही बार बार रिवीजन करते रहता हूँ. तो सर सिलेबस कवरेज करने में सर आगे मुझे प्रॉब्लम जा रही है सर. हाँ, तो ये डेफिनेटली परफेक्शन को नहीं चेज़ करना है. इवन पॉलिटी जैसे टॉपिक्स में कुछ कुछ क्वेश्चन तो छूटेंगे ही, तो वो इशू नहीं बनाना है. दूसरी चीज़, आप कब दे रहे हैं एग्ज़ाम? सर 2025 में. ओके, तो ठीक है, अभी उतना इशू भी नहीं है. बट मेरा तो जैसा मैंने मेंशन किया, मैं ज़्यादा इटरेटिवली करता था. पहले सारे कवर कर लिए, फिर सबके नोट्स बनाए, फिर सब पे और इम्प्रूव किया. उसका यही एक बेनिफिट होता है दैट किसी एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चला जाता है. थोड़ा आप अपने लिए डेडलाइंस बना सकते हैं. इस तारीख के बाद ये सब्जेक्ट नहीं करेंगे, कितना भी ज़रूरत लगे, फिर आप दूसरा करेंगे. फिर जब सारे एक बार ख़त्म हो जाएं, देन यू कैन कम बैक. थैंक यू सर. ओके, एनीवन एल्स? अरे नहीं कोई बात नहीं, बाहर पूछ लेना, कोई इशू नहीं. Sir, my last question is, sir, what is the procedure to read the newspaper, sir? So again, you've just started prep? Sir, I have passed 12th exam, sir, read from bio stream. अच्छा, अभी you have not joined college? No, sir. Okay. Think. Sir, I am finding difficulty in, sir, the difficult words are there in newspaper. Sir, keywords, sir, I am not able to understand them. हाँ, The Hindu especially में this issue will be there. I think बहुत सारे इकोनॉमी वगैरह में भी keywords they are there. So number one thing is over time you will automatically find it to be a lot easier. Secondly, you can go to YouTube. Some of them they read the newspaper with you. They will teach you all the topics. So that will automatically tell you what to focus more on. And accordingly over time ही होगा. It's not something you can learn in one day. Again, visiting previous year questions and YouTube newspaper series, that should help you. Welcome. Okay, so those of you who want to ask about maths optional can stay back. And ठीक है, thank you very much for joining us, and thank you so much Ayan Jan for giving these beautiful insights to our students. And I hope आप लोग benefit करोगे आज जो भी सर ने आपको share किया है, बताया है. ठीक, thank you. Thank you everyone. Best wishes.